Jan, who is an entrepreneur. He has raised money. He has successfully exited his businesses. He was one of the early entrants in the angel ecosystem in Pakistan. He has been an active investor right now. One of the two very known startups that he have invested in, besides others, are Eat Mubarak and Airlift. We have Umar Shah on the panel. Umar is the founder of Collabs, and before coming to Pakistan and building Collabs, he had been working for Abraj. And we will hopefully have Adem Mohyuddin, who's I think hasn't joined us yet. Adem is Director Expansion and Innovation at Leaf Technologies, and he also brings in an interesting perspective to the discussion, where a traditional technology company in Pakistan is looking to now invest in startup ecosystem. We have Murtaza Zaidi with us, been working for Abraj. Murtaza has raised investments and grants and ran companies, worked a lot in development sector, and also he was the director of NIC Peshawar, and now he also, and he has always done this, but now he's the CEO of Energy Automotive. So he is wearing a totally different hat nowadays as compared to his recent past and engagements in his recent past. So we have Bilal on the panel. Bilal Amjad is the founder of Instacare. He is an entrepreneur who brings a different perspective. He recently raised investment as well, and we're going to talk to him about that and what was his experience, as well as what are the tips and tricks if you want to be successful at raising money or interacting with investors. We have Faisal Shehjan on the panel. Faisal is director at NIC. Faisal is an entrepreneur and also an active angel investor as well, besides being director at NIC Lahore. So let me start with Umar. So Umar, my first question to you is who are angels, and do they have wings made of money? Hi, Asif. Thank you for that. I think angel investors are usually people who invest in early stage, who invest in the pre-series A, in the seed stage, who are really closely working alongside the entrepreneurs and working alongside those new young entrepreneurs that need the first sort of cash or the first push. One example I can give you guys is I spent the last 7, 8 years working in private equity venture capital in the Middle East and Africa and Turkey. So the Middle East, especially if you look at Dubai and you look at Saudi, uh, before your VC funds came into being in 2015 and 16, all venture capital in the Middle East was backed by angels. So, I mean, angel investors included Fadi Gandour, RF Naqvi, like all different Saudi conglomerate families and whatnot. And if you see how the VC ecosystem grew in the Middle East, those are 15 mein, there were no VC firms there. There was maybe just Wamda Capital. उसके बाद 2016, 17, 18 में आए. But angels have been investing since 2012 and 13. So, I mean, collectively, I know there's a stat that there were over 150 investments, over $30 million just by angel investors in the Middle East. And that is what helped boom that whole startup ecosystem in that region. So that is basically what angels are doing and traditionally are doing around the world as well. So talking about angels doing the groundwork when it comes to the entire investment structure in any ecosystem or country. So Yusuf, my question to you would be: you have been there since the beginning, and you have invested through syndicates and you have invested alone. Walk us through your journey of these investments and what is the best approach that you have come up with in terms of how do angels function in Pakistan and how they have been functioning?
Well, it's been a very interesting journey, a lot of learning along the way. I basically got into it after my first successful exit when I sold Mixit on Wall Street. And after that, of course, I had about 10, 12 years of very, very hardcore entrepreneurial experience under my belt, creating a Wall Street technology firm and then selling it. And I had some, what do you call extra cash lying around. I'd been part of the Pakistan IT ecosystem for about a decade at that time, a little bit more than that, working with Pasha, working with PSCB and all. So, was interacting with a lot of startups, a lot of companies, very few startups at that time. And then I decided to, get into it. I like the ecosystem at that point. It wasn't very structured, and neither was I. And it was more of what do you call gut investments where I found a good co-founder or a good team trying to help them. But very soon in the first few years, I realized that that's not the smart way to do it. Pakistan may at that point and even now, angel investment will really uh, in a way, there are many angel investors now. I'm very happy that over the last 2 decades, we have progressed a lot. And now there is a lot more structure to it. Even startups, entrepreneurs, co-founders have a pretty decent sense of what they should be doing, how they should be creating a deck, how they should be creating a forecast and budget. So we are, as angel investors, a little bit better off now because we do get a little bit more, what do you call, aware teams in front of us, and there is less hand holding now required. But still, we have a long way to go. And my learning is that doing syndicate investments helps more, meaning creating a group of angels to invest in a startup helps more because you get a lot more smart money in, and you get a lot more people who can help that startup in opening doors, in strategizing, and in all the what you call help that they need. So doing it alone is a little bit more difficult. Doing it alone would only be advisable if you have a really, really slick and a really a founder in front of you who already has had some really serious journeys under his belt. So Airlift would be an example. Dawai is an example. I'm an early investor in Dawai. I'm on the board of Dawai. I'm the first investor in Airlift. But those where I wrote a first check to a single standing founder in front of me was because I knew them and I knew that they had 7 to 10 years, very, very strong journeys under their belt. They had worked at unicorns or they had worked in the what do you call international arena. So they were very mature co-founders or many were very mature founders. So backing them up, writing them the first checks was a lot more easier. Uh, Doing that for teams in Pakistan who still who are very, very smart and who can talk the talk, but they may not be able to walk the walk, is more riskier. And you would want to do it with a group of angel investors who are all very what do you call optimistic about that startup and who can help that that team. ठीक. So building on this, and we'll circle back to. I have a few questions about uh, the flow of raising investments, and particularly in the Airlift's case. So we'll circle back to this and talk about this a bit more. But Murtaza, I want to ask you this: given the risk pyramid and how angels probably they take the risk in an ecosystem. So we want you to kind of like explain the angel side, the angel story of the risk, and why even invest in such a risky proposition where are perhaps better opportunities out there. So अच्छा, I have to wear my NIC hat also. Please उर्दू में ये सारी गुफ्तगू अगर उर्दू में करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगी. तो उर्दू में भी हम बात करते हैं साथ साथ. सो मुर्तजा, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम रिस्क को देखें एंजल इन्वेस्टमेंट में तो बहुत ज्यादा रिस्क है, तो फिर इन्वेस्ट क्यों एंजल्स क्यों उनके दिमाग में क्या है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, नॉट जस्ट
कि अपने वॉलेट में भी ऑब्वियसली पैसे बढ़ाना चाहते हैं, बट इकोसिस्टम में भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो एंजल क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं जबकि दूसरी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं बेहतर? या देखिए, पहली बात तो यह है कि आज से कोई 10 साल पहले सिलिकॉन वैली में एक कॉन्फ्रेंस थी। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात होना शुरू हुई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम वगैरह के अंदर हलचल शुरू हो गई थी। आई बिलीव बैक देन यूसुफ जान एंड वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम कराची वर एक्टिव इन इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स, राइट। लेकिन एक जो मैंने बात उस कॉन्फ्रेंस से ऑब्जर्व की थी, किसी ने कहा जी अगर आपके पास $10 मिलियन है, जो आपके पास स्पेयर कैश है, तो आप $1 मिलियन इन्वेस्ट करें। इसके और बहुत सारी बातें, सिर्फ बात ये नहीं है कि आपने कितना रिस्क लेना है। ऑब्वियसली एंजल इन्वेस्टर एक रिस्क ले रहा होता है, लेकिन वो कुछ चीजों को देख कर ले रहा होता है, ठीक है। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि स्टार्टअप से एक कन्वेंशनल बिजनेस तो होता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ना 1 करोड़ रुपए डाले और अब आप ना रेंट सीकिंग कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि मुझे हर महीने 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए देगा। स्टार्टअप देखता, एक एंजल इन्वेस्टर देखता है कि एक स्टार्टअप की अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या वैल्यूएशन है, वो किस तरह अपने बिजनेस जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा होगा, वो बिजनेस किस तरह स्केल करेगा, वो कितनी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा होगा, वो क्या चीजें दुनिया में चेंज कर रहा होगा कि जिस तरह आप काम करते हैं, आप रहते हैं, या कोई यू वर्क लिव और प्ले। फैसल साहब ने जरा मुश्किल क्रिएट कर दी है थोड़ी सी, लेकिन एक एंजल इन्वेस्टर ये सारी चीजें देख रहा होता है कि अगर आज ये एक स्टार्टअप 2000 लोगों की लाइफ में एक इम्पैक्ट कर रहा है, तो कल ये 2 मिलियन लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। सो मेरा ये ख्याल है कि एज एन एंजल मेरी भी कुछ हम्बल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं 2-3 कंपनीज के अंदर। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इनसे पैसों में क्या रिटर्न मिल रहा होगा फॉर द नेक्स्ट 2-3 years और 4 years। मैंने ये जरूर देखा कि क्या वो स्टार्टअप के अंदर ये एबिलिटी है कि वो 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, 30 लाख लोग या उससे बड़े स्केल को सर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये आप एक चीज आप अगर उसका इम्पैक्ट या आप उसकी रीच को आप देखते हैं, जिसको आप स्केल कहते हैं, तब फिर दूसरे और बहुत सारे इसके साथ एलिमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, राइट। और वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो शायद इस स्केल से पहले है, वो है जब आपका कोई फाउंडर आपके सामने खड़ा होता है। जब फाउंडर खड़ा होता है, जब वो बात कर रहा होता है, उसका पैशन नजर आ रहा होता है, उसका प्लान नजर आ रहा होता है, आई थिंक दैट इज वेयर वो जो एंजल है, दे फॉल इन लव विद दैट स्टार्टअप, राइट। सो वो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो फॉलोइंग इन लव विद दैट स्टार्टअप और दैट फाउंडर फॉर देयर पैशन एंड एबिलिटी टू डिलीवर। ऑब्वियसली ये तो ये नहीं हो सकता कि आप यू जस्ट गिव समवन मनी, जैसे यूसुफ साहब ने अभी बड़ी राइटली कहा कि जब वो उन्होंने अकेले किसी को चेक दिया तो दे न्यू कि फाउंडर कौन है या फाउंडर की सक्सेस स्टोरी क्या है, ठीक है। तो एंजल जरूर रिस्क लेता है, लेकिन जो सक्सेसफुल एंजल्स होते हैं, मतलब हमने एयरलिफ्ट की जर्नी देखी जिसमें यूसुफ साहब ने इन्वेस्ट किया, तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी आय होती है, आई थिंक वो बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क भी लेते हैं, और ये एबिलिटी होती है। यस, देयर इज अ हाई रिस्क फैक्टर के फेलियर बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर 7 फेलियर है और 8वां बड़ी सक्सेस है, तो आई थिंक यू आर एबल टू मल्टीप्लाई अ लॉट मोर मनी। ठीक। सो अगर हम इस चीज की बात करें, सो तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। तो फैसल, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि एक परसेप्शन ये भी है कि बहुत सारे एंजल्स दे हैव सोल्ड देयर सोल टू द डेविल, गिवन जिस तरह की वो डील्स देते हैं स्टार्टअप्स को। सो व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर? क्या उस तस्वीर के दूसरे रुख के बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमें कि वहाँ क्या है? बिल्कुल, द डेविल इज अ फॉलन एंजल, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको देखना चाहिए। देखिए, बाय सिंपल सी बात है, एंजल जैसे मुर्तजा ने भी कहा और यूसुफ जान ने भी कहा, तो एंजल्स आर पीपल हु टेक अ हाई रिस्क, ठीक है ना। वो पहले आते हैं, वो सबसे पहले पैसे डालते हैं, वो सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं। अब आपने एज अ स्टार्टअप देखना है कि जो एंजल आपके साथ मुंसलिक हो रहा है, वो पैसा जो है वो स्मार्ट मनी है या वो डम मनी है, ठीक है ना। आपने कोशिश ये करनी है कि आप उससे पैसे लें जो पैसे के अलावा आपको कोई वैल्यू ऑफर करे, वैल्यू लेकर आए। यूसुफ कह रहे थे कि जी सिंडिकेट इन्वेस्टमेंट इसलिए बेहतर है, एक से ज्यादा एंजल होता है, एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव होता है, एक से ज्यादा जो है
अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें हो सकता है डोमेन एक्सपर्ट हो, उसमें हो सकता है कोई ऐसा एंजल हो जिसका कोई नेटवर्किंग का की एबिलिटी हो, वो किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आपको लेके जा सके। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको एज अ स्टार्टअप देखने हैं। सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि कोई बटुआ लेकर आया है और अपनी चेकबुक लेकर आया है और आपको चेक लिख के दे रहा है। आपने सोचना है कि ये मैं पैसे जो ले रहा हूँ अपने बिजनेस में, इस पैसे का मकसद क्या है, इस एंजल की हिस्ट्री क्या है, ये एंजल करना क्या चाहता है, और ये एंजल जो है इसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या ये एंजल मुझे अगले राउंड तक लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, क्या इसमें एबिलिटी होगी टू स्टे विद मी, राइट। कि मुझे, क्योंकि रनवे होता है, जो पैसे मिलते हैं ना आपको, वो आपको एक रनवे देते हैं, वो आपको एक टाइम देते हैं कि अपने आप बिजनेस को बढ़ा सकें। आपने ये देखना है कि ये मेरा जो बिजनेस का बढ़ावा है, क्योंकि आपने सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं लेने। कोई एंजल आपको पैसे सर्वाइवल के नहीं दे रहा कि आप सर्वाइव करें एज ए बिजनेस, वो आपको पैसे दे रहे हैं टू ग्रो, उस स्टेज पे आप पहुंचे कि नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आए। क्योंकि मुर्तजा ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया रेंट का, ये बहुत अच्छा लफ्ज है इन द सेंस कि हमें ये समझना है कि आपने रेंट सीकर से पैसे नहीं लेने, जो चाहता है कि जी आप महीने के महीने उसको जो है ना कोई रिटर्न देते रहें, उसको साल के साल आप रिटर्न देते रहें, उस एंजल की तो नजदीक ना जाइएगा। आपने उस एंजल से पैसे लेने हैं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म जो है वो आया है, उसका पैसा जो है वो पेशेंट इन्वेस्टमेंट है, पेशेंट मनी है, उसको जल्दी नहीं है कि आज मैं डालूं और कल मैं इसमें से निकाल लूं। ठीक है ना, जैसे यूसुफ जान ने कहा कि उन्होंने जब पहला अपना एग्जिट किया मिक्सिट का, उनके पास he had cash available that he could actually invest and he did not have to seek rent on it. उनको कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं चाहिए था, उनको ये नहीं था कि जी मुझे महीने के या क्वार्टरली या साल के डिविडेंड आप देना शुरू करें। ये ज़हन में रखना है हर स्टार्टअप ने, जब आप किसी एंजल के साथ बैठते हैं और उसको पिच करते हैं, तो इट इज नेसेसरी। जैसे एंजल्स आपको वैल्यू कर रहे होते हैं, ड्यू डिलिजेंस अपनी कर रहे होते हैं, आपके बिजनेस को समझ रहे होते हैं, आपको समझ रहे होते हैं, आपने भी ये काम करना है। आपने भी समझना है कि जो जो एंजल है उसकी मुझे असल वैल्यू क्या है बियॉन्ड द मनी, ये बहुत जरूरी है। देन यू विल बी एबल टू सिफ्ट बिटवीन द डेविल एंड द एंजल। अदरवाइज आपको उसकी दुम नहीं नजर आएगी, लेकिन वो दुम होगी, और वो दुम जो है ना आपको बाद में भारी पड़ेगी। ठीक। सो हमारी जो ऑडियंस है इसमें बहुत सारे ऑब्वियसली स्टार्टअप्स भी हैं, बट क्योंकि ये लाइव जा रहा है फेसबुक पे भी बहुत सारे पेजेस पे, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो देख रहे हैं जो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो इसलिए हम दोनों पर्सपेक्टिव से इस पैनल में बात करते रहेंगे। सो आदम, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, आप एक बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव थोड़ा सा लाते हैं। वो पर्सपेक्टिव ये है कि एक मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी कंपनी पाकिस्तान में जो पार्टली प्रोडक्ट्स पे और पार्टली आउटसोर्सिंग पे भी काम करती है, जो कि अब इन्वेस्ट कर रही है और करना और भी मजीद करना चाह रही है इन स्टार्टअप्स। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड यू गाइस मेकिंग दिस डिसीजन कि हमें अब ये डाइवर्सिफाई करना है और हमें स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, या हमें अपने उस बिजनेस से जो पैसे बना रहा है और उसको मजीद एक्सपैंड किया जा सकता है उसके साथ साथ इस तरफ भी आना है? जी, आई थिंक ये रियलाइजेशन ओवरऑल जो है, अब प्रोग्रेसिव कंपनीज जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उधर डेफिनेटली है कि दे डेफिनेटली वांट टू डाइवर्सिफाई। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द मेजर फोर्स आई वुड से, कि जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे लुक अराउंड देयर ऑर्गेनाइजेशन और देयर कोर बिजनेस एंड दे लुक एट इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज through which they can diversify and again जिस तरह आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जिसको कहते हैं कि आपका कैश काउ लेके चल रहे होते हैं, so definitely they want to have a pipeline of interesting ideas or eventually the businesses in which they want to invest. So I think यही हमारा भी basically जिसको कहते हैं excitement थी, कि ऑब्वियसली एक चीज ये होती है कि वन थिंग वी कुड डू वाज कि पैसे बना लिए हैं, आप सारे आप घर बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं और याशी करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। या दूसरी अपॉर्चुनिटी ये थी हमारे पास टू क्रिएट अ रियल वैल्यू इन द मार्केट एंड टू क्रिएट समथिंग बिगर, बिकॉज जो वैल्यू की जो अंडरस्टैंडिंग है वो जब पैसे से आपकी एक इम्पैक्ट के ऊपर चली जाती है, एक सोशल इम्पैक्ट पे आपकी चली जाती है, तो आई थिंक वो एक माइंडसेट चेंज है जो कि जब हमारे अंदर आया
तो हमने कहा नहीं यार, ये जरूरी है कि नाउ वी शुड एक्सप्लोर न्यूअर आइडियाज एंड न्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड देयर इज लॉट ऑफ टैलेंट अराउंड यू। तो आप लोगों से जब मुलाकात हुई, ओवरऑल पूरा एनवायरनमेंट जिस तरह पाकिस्तान का ग्रो कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, सो डेफिनेटली वी सी a lot of ideas brewing up in the environment and yes of course मेच्योरिटी स्टेज पे अभी नहीं पहुंची ये चीज कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी एग्जैक्टली समझ सकें कि जो इन्वेस्टर्स हैं व्हाट दे आर लुकिंग एट, और उसको इंजीनियर करना पड़ेगा उनको, अपने आइडियाज को, अपने स्क्रिप्ट को, जो कि बड़ा पैशनेट होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। जो हमें एक्सपीरियंस हुआ कि दे स्टिक टू देयर आइडियाज एंड सम ड्रीम, और उसमें से कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टर्स के साथ, और फिर वो साल साल लगे रहते हैं अपने आइडिया के साथ। बट एंटरप्रेन्योर वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी तालियां जरूर बजाते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो इन्वेस्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस आइडियाज को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। इन शॉर्ट आई थिंक वो जो माइंडसेट चेंज है of creating an impact, of diversifying their businesses, of having a pipeline of interesting ideas and businesses, I think that is the main force that basically brought us, and हम आपकी collaboration के साथ हमने फिर investments की। So बिलाल, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक हमने बात की एंजल्स, थोड़ा सा अभी हमने एंजल्स के बारे में बात की, अब स्टार्टअप साइड पे बात करते हैं। जनरल परसेप्शन ये होती है कि लोग चेकबुक लिए फिर रहे हैं और आप हाथ खड़ा करेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, और दूसरा ये भी होता है कि जब तक आपने पैसे नहीं रेज किए होते तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं पैसे रेज कर लूँ तो ये तो ठीक हो जाएगा काम, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में हमें थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि व्हाट टुक यू, कितनी एफर्ट लगी आपकी टू रेज अराउंड, एंड व्हाट आर द थिंग्स जो कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने माइंड में रखनी चाहिए स्टार्टअप करते वक्त कि अगर आपने पैसे रेज करते हैं तो क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच यासिर। मैं इसका आंसर मैं स्टार्टअप्स को बेसिकली इस तरह डिफाइन करूंगा, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को, कि ये आग का दरिया है और हमें डूब के जाना है। मुझे याद है जब हम लोगों ने इंस्टाकेयर को स्टार्ट किया था तो मैंने कभी भी ये नहीं किया कि आइडिया स्टेज पे इन्वेस्टर के पास चले जाऊं और उसको मैं बताऊं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारे पास बहुत अच्छी चीजें हैं, वी हैव अ ग्रेट प्लान, अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है, हम 6 लार्जेस्ट कंट्री में रह रहे हैं, ऑल दैट एवरीबॉडी नोज। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, जैसे यासिर आपके साथ मैं काफी क्लोजली काम किया, फैसल साहब के साथ बड़ी देर अरसा कनेक्टेड रहा हूं इसमें, और अभी भी एडवाइस भी लेता हूं और इसमें मजीद गाइडेंस को सीख करता रहता हूं ऑन एवरी स्टेज। मैंने कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जो था वो रश नहीं किया था। मैंने 2 चीजें हमेशा अपने साथ रखी थी, एक बूटस्ट्रैप किया था अपने स्टार्टअप को, दूसरा पेशेंस। दोनों चीजें रिक्वायर्ड थी स्टार्ट में। तो जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स मुझे सुन रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि मुझे तो इवन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का भी इतना खास कोई आइडिया नहीं था कि मुझे अपने नेक्स्ट 3-4 इयर्स 5 इयर्स किस तरह से प्लान करने हैं। ऑल आई नो कि जिस तरह सारे सोचते हैं कि शायद मेरे पास पैसे आएंगे तब कर सकता हूँ, बट लकीली मैंने बहुत जल्दी इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया था। इट इज नॉट मनी बट द नंबर्स ऑफ योर कस्टमर्स, नंबर्स ऑफ योर यूजर्स जो आपको एक्चुअली में चाहिए होते हैं टू रेज इन्वेस्टमेंट। देखें, इन्वेस्टर जितना मर्जी हम लोग सोशल इम्पैक्ट को हाईलाइट कर लें, बट बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी। तो अगर आप बूटस्ट्रैप करके अपनी एफर्ट से खुद पैसे नहीं जनरेट कर रहे तो इन्वेस्टर भी आप इन्वेस्ट नहीं करेगा। और इसने ही और इसी वजह से मुझे तकरीबन कुछ ज्यादा अरसा लगा था, मैंने स्टार्टअप को पहले खुद स्टेबल किया था। इसकी एक रीजन ये भी थी कि मुझे ये अंडरस्टैंड करना था कि मुझे इन्वेस्टर से जो पैसा चाहिए कितना चाहिए और क्यों चाहिए, और वो कितने अरसे में मुझे रिटर्न करना है, और उसके बदले में मुझे इन्वेस्टर को क्या देना है अदर देन मनी, और इन्वेस्टर से मुझे क्या चाहिए अदर देन मनी। सो जब खलीफ ने इन्वेस्टमेंट की थी इंस्टाकेयर के अंदर, सो आई नो आदम और मैं, हम लोगों को 5-6 मंथ्स लगे थे अंडरस्टैंड करने में कि एक्चुअल जर्नी क्या है। और हम लोगों ने जो हमारी प्रोडक्ट लाइन थी, जो हम लोग फ्यूचर में करने जा रहे थे, 5-6 मंथ्स की ड्यू डिलिजेंस के बाद हम लोग एक उस पे आए थे। और हम दोनों ने मिलकर, खलीफ टेक्नोलॉजीज ने और इंस्टाकेयर ने मिलकर, हमारी टीम्स ने जो काम किया था, और एक मेरे प्लान को मजीद रिफाइन किया था खलीफ टेक्नोलॉजीज ने, और हम लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी थी। और हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट पे रेज की वो इट वाज नॉट अबाउट मनी बट इट वाज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। वी हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स, और
आई नो कि मुझे किसी भी पॉइंट पे खलीफ जो है वो पैसों की कमी नहीं होने देगा, और ना ही एक्सपर्टीज जिसमें मैं लैक करता था वो खलीफ ने बड़े अच्छे तरीके से उनको भी जो है वो कवर अप किया मेरे स्टार्टअप के लिए। ठीक, so Yusuf, building on this, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ. You are investors like startups like Eid Mubarak and Airlift, और एयरलिफ्ट की जर्नी की हमने एक थोड़ी सी शुरू में बात की थी. एयरलिफ्ट का जर्नी हैज बीन अ स्पेशल जर्नी इन टर्म्स ऑफ कि जैसे फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि हाउ कैसे उन्होंने शुरू में एंजल मनी रेज की, एंड हाउ क्विकली दे स्केल्ड अप टू रेज VC राउंड. What was so special, number one, in that journey that made that happen, and how often do you see कि ये चीज अब ऐसे होगी कि people will raise an angel round, and then they'll be able to raise VC investment very quickly, जो कि ये नहीं होता रहा ज़्यादा एयरलिफ्ट से. in pre airlift era this hasn't happened that much. हम तो सब यही चाहेंगे कि ये बार बार हो और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो, मगर प्रैक्टिकली देखा जाए और फ्रैंकली देखा जाए तो ये एयरलिफ्ट जैसे स्टार्टअप्स जो हैं वो मैं उनको कहूँगा कि वो मोर ऑफ क्या बोलते हैं अनॉमली हैं. ऐसे फाउंडर्स अभी नहीं हैं पाकिस्तान में, या को फाउंडर्स अभी नहीं हैं जिन्होंने अपने पिछले 8-10 साल के अंदर ऐसी जर्नीज़ एक्सपीरियंस करी हुई हैं. तो उस्मान इज़ समबडी दैट आई नो फॉर द लास्ट मे बी 6 years एज अ यंग एंटरप्रेन्योर वर्किंग इन न्यूयॉर्क. और देखें वो भी एक आपकी ये इन्वेस्टमेंट और इस इकोसिस्टम में जब आप एक डेकेड लगाते हैं, उससे ज़्यादा लगाते हैं, तो आई इन्वेस्टेड इन, आई वाज द फर्स्ट एंड आई रेज द इन्वेस्टमेंट फॉर अपना क्या बोलते हैं पॉपिंजे, विच वाज रन बाय सबा गुल. और उस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो मेरी रिलेशनशिप हमारी बनी विद सबा गुल, उस्मान इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ अपना सबा. वहाँ से I got introduced to Usman and he and was in a way mentoring him on his career and all that for the last 5-6 years. तो ये जो है एक तो ये कि इस तरह के अभी फाउंडर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, मगर फिर भी कम हैं. Usman has already worked in at least 2 unicorn journeys, so very up close with founding teams over there. I knew his background, I knew what he was doing for the last 6-7 years. I had idea of his skill set. और जब हमने बैठ के फिर ये जब इस सेगमेंट के ऊपर बात करी, ये सारा आइडिया हमने मिलकर ही डिस्कस किया, तो उस वक्त इस तरह के फाउंडर को बैक करना, कि वहाँ ये था कि देयर वाज अ हाईली, ही वाज द मोस्ट लाइकली पर्सन कि इस तरह के स्टार्टअप्स में इट इज़ अ करीम और ऊबर सॉर्ट ऑफ अ प्ले विच विल रिक्वायर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फंड रेजिंग. एंड सो it's very hard for somebody who hasn't had these journeys. एक पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बहुत ही ब्राइट लोग हैं, मैंने बहुत सारों के साथ काम किया है, मगर इस तरह की जर्नीज और एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस और नेटवर्क्स बहुत ज़रूरी हैं. तो उस्मान के पास ये एक लाइकलीहुड था कि अगर कोई रेस कर सकता है इस तरह का फंड पाकिस्तान में स्टार्टअप करते हुए, तो उस्मान you could at least place a bet on him, and that came true. Not only did he not execute, but he was able to raise the funding. Of course उसके अंदर फिर वो उसके वो भी स्मार्ट मनी लेकर आया. उसके पास भी जो पहले 8-10 एंजल्स थे, they were all very well connected, and then I introduced him to Atif Awan, and from there on Atif wrote a seed check, and from there on their journey just started going up and up. और फिर फाउंडिंग टीम की होना बहुत ज़रूरी है. उस्मान डिड नॉट हैव अ को-फाउंडर, और वो उसको को-फाउंडर ढूंढना, उसके साथ मैच मेकिंग करवाना, और finally getting him a very mature tech co-founder like Ahmed Ayoub, that is where the team gelled, and that is where the potential really came out. तो मैं बस यही कहूँगा कि वो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब बहुत ही ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ हुई है वो अब करीम की जर्नी हुई है. कि करीम में से जो लोग अब निकल रहे हैं, उनमें से बहुत सारों से मैं मिला हूँ पिछले 6 महीने में. आई वॉज इन दुबई, आई वॉज इन कराची, आई मेट मैनी ऑफ देम. Many of the very, very bright youngsters in Kareem have met me personally. They all want to do their own startups. उन्होंने अब ऐसी जर्नी लिव करी है कि there is a very strong likelihood कि उनमें से 4-5 जो हैं they can create अपना stellar अपना क्या बोलते हैं कंपनीज. तो जर्नी का होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपोजर का होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इवन मैं सिर्फ एक बात ये ज़रूर कहूँगा, ये जो सारे क्या बोलते हैं पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, और एंजल इन्वेस्टर्स भी मुझे सुन रहे हैं, और प्रॉबेबली इवन VCs भी, नॉट एवरीबडी नोज इट ऑल, बट मेरी लर्निंग यही है कि एक सक्सेसफुल करीम या एयरलिफ्ट बनाने के लिए
उतनी ही अपना प्रिसीजन चाहिए जितनी एक स्विस वॉच को बनाने के लिए में चाहिए होती है. टाइमिंग, प्रिसीजन, क्राफ्ट एक वर्ल्ड क्लास लेवल का चाहिए होता है फॉर समथिंग लाइक दिस टू हैपन, फॉर अ यूनिकॉर्न टू हैपन. और इवन मैं एक पाकिस्तान में तो कोई कंपनी $100 मिलियन की वैल्यू भी रेज कर ले तो मैं उसको एक अपना देसी यूनिकॉर्न कहूँगा. तो प्लीज़ एवरीबडी अंडरस्टैंड फ्रॉम द इन्वेस्टर to the founders के the craft and the precision that is required is, believe me, what goes into a Rolex or into a Swiss watch. It is all science and nothing but science. सही सही. So अब I think बड़ी interesting direction में conversation जा रही है. I have so many questions in my mind, but very quickly हमारे पास questions आ रहे हैं, chat में भी आ रहे हैं, और उसमें से एक बड़ा interesting question है जो बहुत पॉप अप करता है, और वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे ही. So I'll go around and ask that, but before I do, मुर्तजा, हम बात कर रहे थे, हम बात करें continuously people invest in people. तो evaluate कैसे करते हैं? ये ठीक है, बात तो ठीक है कि people invest in people, but how do you evaluate people? Very good question. So number one thing is, जैसे यूसुफ साहब ने बात की, मैं सिर्फ उसको एक थोड़ा सा रिपीट करूंगा. जैसे उन्होंने एयरलिफ्ट के फाउंडर की बात की कि he knew the airlift founder for the past 6 years, right? लेकिन अगर मैं different perspective से लूं तो there's a big possibility that the airlift founder also kept himself connected with Yusuf Jan and the likes of other investors, right? So he was there, he was constantly networking and reaching out to different people and just staying in touch without even pitching, or without even trying to grab them for some particular idea, right? And that is why that relationship happened. So ये बहुत जरूरी है कि आप जो है ना टच में रहें. किसी ने भी क्वेश्चन एंड आंसर में ये सवाल भी पूछा है कि आप नेटवर्क करते रहें और लोगों से मिलते रहें. अब बात आती है आप एवेल्युएट कैसे करते हैं. तो सबसे पहली तो चीज ये होती है, मैंने पहले भी अपने एक जवाब में बोला था कि जब आप अपने किसी भी आइडिया के ऊपर बहुत पैशन से काम करते हैं तो वो आपकी कन्वर्जेशन में नजर आता है, आपकी कमांड होती है उस टॉपिक के ऊपर. आप फिर उसके लिए डिफरेंट चीजें बनाते हैं. जैसे मैंने रिसेंटली पिछले 5-6 मंथ्स में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल वेंचर्स के लिए एंजल सीड स्टेज इन्वेस्टमेंट रेज की, और जो बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिस तरह कुछ डेविल एंजल्स की बात हुई, लेकिन हम लोगों ने अभी 3% डाइल्यूट किया अपने आप को, और वी रेज्ड $200,000, राइट? उस वक्त डॉलर गिरा नहीं था, तो उस वक्त हम अपने आप को $300,000 कहते थे, लेकिन डॉलर गिर गया तो वो हम रुपी टर्म के अंदर कम हो गए. तो लेकिन उसके पीछे रीजन क्या थी? 2-3 चीजें हम लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स को बावर कराने में कामयाब हुए थे. एक चीज ये थी कि आवर पैशन एंड नॉलेज अबाउट द टेक्नोलॉजी, कि हम उसके ऊपर 1 साल काम करते रहते, हमने अपने पैसे खत्म किए, और हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि पिछले 1 साल में हमने इतने ज्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं, अब हमारा शायद ब्रेकिंग पॉइंट करीब होगा, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, वरना शायद हम आपसे बात भी ना करते. दूसरी बात ये कि जो हमने टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जो बना ली है, वो पूरे मुल्क में अभी बाकी सारे कंपेटिटर से बेहतर है. हमारी अप्रोच बेहतर है. जो हमारा बिजनेस प्लान है, कि सपोज करें कि कोई मैं उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सारी चीजें जब हम अपनी एबिलिटी, अपनी नॉलेज, अपना प्लान लोगों को बताने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऑलरेडी एक इंटरेस्ट आ जाता है. और मेरा ये ख्याल है कि एंजल इन्वेस्टर, शायद यूसुफ जान कैन प्रॉब्ली करेक्ट मी, शायद नंबर से ज्यादा कॉन्फिडेंस या गट की फीलिंग के साथ आपके अंदर इन्वेस्ट करता होगा. वो जो गट फील है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से होगा. So, यूसुफ जान, आप you want to add? I just want to say something. You're very true. Gut, chemistry, passion, ये सब चीज़ें एंजल इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्ले आउट होती हैं. और ऐसे इतना राउंड्स आगे अपना बड़े होते जाते हैं, तो फिर वो एनालिसिस और एनालिटिक्स और फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल मॉडल्स, वो ज़्यादा गट से ज़्यादा वो अपना टेक ओवर कर लेते हैं. बट आई थिंक यहीं मैं सिर्फ आई जस्ट वांटेड टू से, आई जस्ट वांट टू रिपीट कि इट इज़ अ क्राफ्ट, इट इज़ अ साइंस. The founding team and the angel investor also must realize
the sooner we realize कि अगर हमें आगे की जर्नी का नहीं पता तो हम भी उसके लिए prepared नहीं हैं, and we are, the investment will go bad, no matter how good the founding team is. So the founders need to be very, very educated about this journey. The angel has to, of course, be better educated than the founder. और तब ही जाकर मैं समझता हूँ कि आगे एक विनिंग, देयर इज अ स्मॉल शॉट कि ये एंजल से आगे जाएगा सीट पर और सीट से आगे जाएगा सीरीज ए पर. नहीं तो अगर आप मैं एजुकेटेड नहीं हैं और हमारे से फिर कम फाउंडिंग टीम एजुकेटेड नहीं है, इट्स गोइंग नोवेयर. आई एम बी वेरी ब्लंट अबाउट इट. एवरीबडी रीड अप अ लॉट मोर अबाउट दीज जर्नीज. इनके अंदर क्या, इनके अंदर यू नो व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू हैपन. तो इट इज़ अ प्ले बुक जिसको आपको रट्टा लगाना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली समझना पड़ेगा. सिर्फ इमोशंस और पैशंस के ऊपर मैंने बहुत अच्छी टीम्स जो हैं, दे हैव आल्सो देयर एफर्ट एंड द एंजल्स एफर्ट्स हैव ऑल गॉन टू वेस्ट. So be very careful, not just the founders or the startups, but the angel investors or investors in general also. There is, this really is all about precision and science, and I will keep अपना क्या बोलते हैं emphasizing that. ठीक. So या मुर्तजा एंड में कर दूं कि अपनी जर्नी में मैंने एक चीज जरूर जो एंजल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गेन करने के लिए जो हमने किया वो ये क्या था कि हमने अपनी सारी जितनी भी हमारी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है उसको माइलस्टोन में डिवाइड किया था खुद से कि भाई हम आपसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन आप बेशक हमें ना एक साथ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए मत दें, हमें आपसे इन माइलस्टोन्स के ऊपर इन रिजल्ट्स के साथ आपसे पैसे चाहिए. ठीक है, तो वो एक ऑलरेडी एक हमें ना एक हम कॉन्फिडेंस उनका ग्रैब करने में कामयाब हो गए थे कि दे कुड सी कि भाई ये इन्होंने बिल्कुल ड्राफ्ट की भी अपनी 1 साल की जर्नी, उस जर्नी के इनके डिफरेंट माइलस्टोन है और वो इन माइलस्टोन्स को अचीव करना चाहते हैं. तो हमारे शायद पैसे कहीं पर जाया ना आ रहे हो और ये प्लान के ऊपर है. और जब प्लान में ऐसा नहीं कि प्लान में चेंजेस हुई, कोरोना एरा के अंदर पिछले 2 मंथ्स के अंदर हमारे प्लान के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए, लेकिन वी हैड टू एडजस्ट. और सबसे पहले जो हमने अपना कॉन्फिडेंस स्टैब्लिश किया वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ ही किया कि नाउ वी हैव टू टेक दिस डायरेक्शन और टेक दिस डायरेक्शन एंड स्टफ लाइक दैट, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. आपने जैसे वैल्यूएशन की बात की कि जब आप किसी को पिच करें तो उसके साथ आप अपने प्लान जरूर आपके पास होना चाहिए. और वो क्यों, और एक बात बहुत अच्छी की बिलाल ने कि कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे खर्च करेंगे, ये बहुत की क्वेश्चन है. वरना मैं भी जब NIC के या उससे पहले टाई के अंदर जब स्टार्टअप्स के साथ काम करता था तो पीपल यूज्ड टू कम एंड से कि जी वो सर वो हमें ना $1 लाख चाहिए. क्यों चाहिए, किधर स्पेंड करोगे, क्या अभी बाकी कोई रिसोर्सेज हैं या नहीं है, क्या तुम बिल्कुल दीवार के साथ लग गए हो कि तुमने अब अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी है. ये आंसर्स बहुत ज्यादा इमेच्योर स्टार्टअप्स के पास नहीं होते. तो आपको एज अ मैच्योर स्टार्टअप जरूर इमर्ज करना है अपने इन सारे आंसर्स के साथ. So the answer that I'm getting is, if I quickly summarize it, so we're talking about knowing what you're doing, at least having a plan, the passion and the skin in the game बहुत important है जब आप पैसे रेस करना चाहते हैं, to show the investors कि आप ये काम करना चाहते हैं. इसी पे I would add one more thing कि अक्सर लोग आकर सवाल करते हैं कि मैं अपना बिजनेस रजिस्टर नहीं करना चाहता. So one of the और पैसे भी रेस करने हैं, सब कुछ करना है, बट लोग स्टार्टअप रजिस्टर नहीं कर रहे होते. एंड आई थिंक वो एक छोटी सी चीज है दैट यू शुड आल्सो गेट आउट ऑफ द वे एंड से कि ये मैं कर चुका हूं, ताकि लगे कि आप एक काम कर रहे हैं जिसमें आप सीरियस हैं और आप इसको परस्यू करना चाहते हैं. आप ये नहीं सोचते रोज रात को सोने से पहले कि अगर कल बिजनेस बंद हो गया तो कोई बात नहीं, आई विल मूव ऑन, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. Coming to the questions that we are getting, so a question I'll go around the room and I'll ask everyone, starting with Umar. NDAs with investors. What do you think? क्या practices हैं internationally भी, locally भी, NDAs sign करवाने चाहिए इन्वेस्टर से, insist करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? I think NDA is essential to get signed because आप investor को trust कर रहे हो, अपनी company financials, your cap table, you are giving them all your data or your, so it is best practice to have an NDA signed
and also side from the investor, because it just gives that level of confidence that the guy is not just, I mean, fooling around कि जी अच्छा मैं पैसे डालूंगा नहीं डालूंगा. So I mean, on that, I think it's absolutely necessary. So, Adam, your thoughts on that? I think NDA is important. Obviously, इसमें stakes होते हैं आपके जो entrepreneur है, आपके investor के चीजें professionalize करने के लिए. ये भी जिस तरह I would add on यूसुफ जिस तरह बता रहे हैं कि एक एजुकेटेड जर्नी जो है उसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज हैं आई बिलीव जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे एंटरप्रेन्योर्स को डेफिनेटली होनी चाहिए. वो किसी भी तरह लूजिंग एंड पे नहीं होना चाहिए. मकसद ये है कि कोई भी इसमें लूजिंग एंड पे ना हो और एक हेल्दी एनवायरनमेंट जहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स प्रॉपरली लेड आउट हो, उसकी बेस रख के फिर आगे चलाया जाए. ठीक. सो यूसुफ मैं इसी जी मुर्तजा आप पहले आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए. So yeah, so देखिए असल में ना there are two parts to it, right? Number one part is a teaser pitch in my opinion, right? हम बहुत सारे स्टार्टअप जो है ना कभी कभार इसी चीज के अंदर पड़ जाते हैं कि हम अपना आइडिया शेयर करें ना करें, राइट? सो देयर इज टू पर्सपेक्टिव. वन इज जो आपकी टीजर पिचेस होती हैं, दैट कैन बी वन स्लाइड और टू स्लाइड्स, राइट, अबाउट द आइडिया. यू कैन मेक इट रियली एक्साइटिंग. तो टीजर पिच मेरा ये ख्याल है कि एक स्टार्टअप को जरूर अपने नेटवर्क के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए. ऐसी बिला वजह लोगों को ना ईमेल करे, लेकिन जब नेटवर्क करे, लोगों से मिले, कॉफी के लिए मिले, उनके घर जाए, एक दो स्लाइड्स के सर मैं ये काम कर रहा हूँ, यू नो इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू नो आई वांट टू पिच समथिंग टू यू, राइट? आई थिंक उसके ऊपर, क्योंकि कभी कभार जब आपके लिए बैरियर भी हो जाता है कि पहले ही आपका एक एनडीए आ जाता है ना और आपने कुछ पता नहीं होता है प्लान के बारे में, तो मैं कहता हूँ यार ये देखो यासिर कितना जो है ना एरोगेंट हो रहा है. कुछ हमारे सोशल नॉर्म्स भी हैं पाकिस्तान के, राइट? पीपल डोंट एट टाइम्स, लोग जो है ना इसको जरा पर्सनल भी ले लेते हैं, लेकिन जो टीजर पिच वाला आपकी स्टेज है आप उसको जरूर भेजें. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्लान, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर यू नो डिटेल्ड पिच, और या फाइनेंशियल्स जिसके अंदर आपने फीजिबिलिटी देनी है या यू नो वैल्यूएशन की आपने स्ट्रेटजी देने हैं या आपकी पूरी वैल्यूएशन का डेक है, उस वक्त डेफिनेटली आप एनडीए साइन करें. लेकिन we reach to a stage और उसके अंदर फिर आप humbly कह सकते हैं कि सर अब हमने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, this is very critical to our business, this is very much confidential, अभी हम इसको ओपन नहीं कर रहे, तो प्लीज साइन दिस NDA. But जी मुर्तजा बोलिए. yeah, so बस ये मेरा two bits है. I just Yasir, before you answer that, I want to add something. जी फैसल हम आपकी तरफ आते हैं. Before you answer this, यूसुफ एक छोटी सी चीज सवाल की वजह से मैं कह रहा हूं, unless you have a different question. जी इसी सवाल पे अभी हम बात कर रहे हैं, because I want to add a perspective before Yusuf answers something. So investor के एंड पे liability क्या है? Because as an investor मुझे तो same ideas बहुत सारे लोग pitch करते हैं and I might choose to invest in something and not invest in another, and could be similar, और हो सकता है मुझे हफ्ते पहले किसी ने pitch किया. तो now framing that into the question, what are your views on this? Well, एक तो ये कि Murtaza made a good point कि you know there's a certain high level deck or a you know one pager or a two pager that you should be willing to share very freely with potential investors, potential advisors and all that. जो आपकी secret sauce है और जो आपके detailed recipe है, वहाँ आकर आप you have to be careful. And वहाँ NDAs I would strongly agree, आजकल इतने मुश्किल भी नहीं है. म्यूचुअल NDAs कहते हैं जो दोनों साइड्स को इक्वली ऑब्लिगेट भी करते हैं और अपना वो भी करते हैं प्रोटेक्ट. तो म्यूचुअल NDAs डेफिनेटली साइन करवाने चाहिए, फोल्डर में होनी चाहिए आपके. मैं आपको सिर्फ एक बड़ा ब्रीफली ये कहूँगा कि I started Mixit in 2001. मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किया था इन कराची एंड वहाँ से वो कंपनी शुरू हुई थी. 2011 में उसका एग्जिट हुआ. वी सोल्ड इट टू अ लिस्टेड कंपनी एट द लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और वॉल स्ट्रीट की एक बड़ी ही अच्छी कंपनी हमने बनाई जिसको हमने बेचा. हमारा PwC जो भी है, PwC जो बिग कंसल्टिंग फर्म है, ऑडिटिंग फर्म है, लंदन ने ऑडिट किया. और उस पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो मैंने हायर किया था 2001 में, वहाँ से उन्होंने उसकी ड्यू डिलिजेंस शुरू करी. और
11 साल में जितने भी लोग हायर हुए थे, जितनी भी हमने डील्स करी थी, एक एक चीज़ को उन्होंने रिक्वायर किया और उसको देखा। बहुत ही एक्सटेंसिव ड्यू डिलिजेंस हुई, और उसमें इवन दे वर सरप्राइज के वी वर सो प्रिपेयर्ड, एंड वी वर सरप्राइज के लकली हमने कुछ अपने ऊपर भला किया और हमने ये चीज़ें मेंटेन रखी। तो अच्छे आगे जाकर जर्नीज़ में, ये तो मैं एग्जिट की बात कर रहा हूँ, सीरीज़ ए में जाकर बड़ा एक्सटेंसिव ड्यू डिलिजेंस होता है, फिर सीरीज़ बी में, सीरीज़ सी में। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आपने जो मुझसे आखिरी सवाल पूछा वो ये था कि इन्वेस्टर्स के लिए क्रेडिबिलिटी और एथिकल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो दैट इज़ इट। अगर आप एथिकल नहीं हैं तो आप डेफिनेटली सिमिलर आइडियाज़ आपके पास आएंगे। यू हैव टू कीप देम क्लोज टू योर चेस्ट, एंड आप उनको 3 डिफरेंट स्टार्टअप्स एक ही आइडिया पिच कर सकती हैं, बट एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू बी वेरी एथिकल, यू हैव टू कीप देम वेरी सेपरेट, यू डू नॉट शेयर इधर की बात उधर, एंड यू हैव टू डू अपना जस्टिस टू दोज स्टार्टअप्स। तो इन्वेस्टर्स की भी क्रेडिबिलिटी और जो एथिक्स है वो बहुत ज़्यादा इन प्ले होती है, एंड इन्वेस्टर्स रियली हैव टू बी वेरी वेरी एथिकल अबाउट इट। Thank you so much. That was a very valid point that you raised. So Faisal, हम आपकी तरफ आते हैं very quickly. Someone has asked on the chat कि what are the platforms where a startup register their idea? So you don't register your idea yet. It's as simple as that. Go ahead and do it, and come up with your own twist, और उस पर को progress करें, and that what matters. Ideas register करना left, right, center is not going to get you anywhere in life. So that's not something you focus on. So Faisal, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इस टॉपिक पे, and I'll add another question on top of it. ताकि हम आगे आगे कन्वर्सेशन को भी चलाते रहें। और वो ये क्वेश्चन है कि यूसुफ रेज्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि वर्किंग फॉर अ बिगर कंपनी, स्पेशली अगर कोई यूनिकॉर्न है, दैट गिव्स यू एक्सपोजर ऑफ अ सर्टेन काइंड, जो बहुत हेल्प करता है इन गोइंग आउट और फिर इमेजिनिंग अनदर स्टार्टअप, जो कि एंड यू हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको सीखने की जरूरत नहीं होती। What are the other ways कि हम अपने यंगस्टर्स में एक्सपोजर क्रिएट कर सकते हैं जब वो स्टार्टअप साइड पे आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं? तो और क्या टूल्स हैं, मेथड्स हैं, अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम इस में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि इस तरह की नॉलेज और स्किल सेट लोगों में आए? यूनिकॉर्न तो बहुत कम है, और यूनिकॉर्न में काम करने वाले लोग भी अभी पाकिस्तान में बहुत कम है। सो हाउ डू वी अप्रोच इट फ्रॉम एनी अदर साइड? अच्छा, फर्स्ट दी क्वेश्चन अबाउट कि जी सिक्योरिटी, कि जी मैं अपना आइडिया शेयर करूं या ना करूं। आई थिंक बहुत ज्यादा मैंने आज सुना है आइडिया। आपको पता है कि हम जो है इसको डिफरेंट एंगल से अप्रोच करते हैं। हम कहते हैं आइडिया को साइड पर रखो, पहले बताओ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना? कौन से प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया जिसके लिए आप कोई सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। इन मोस्ट केसेस देयर इज नो न्यू आइडिया, आइडियाज वही हैं, वही चीजें आती हैं। उबर और करीम आ गई तो अब 25 उबर और करीम के आइडियाज आते हैं, ठीक है ना? एयरलिफ्ट, यूसुफ आल्सो मेंशन्ड दैट कि एयरलिफ्ट वाज अ उबर और करीम टाइप ऑफ आइडिया व्हिच वुड नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल, राइट? इट वाज अगेन अबाउट गेटिंग पीपल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यस, उबर ईट्स भी आ गई और करीम ईट्स भी आ गई और वो सारा कुछ हुआ, लेकिन वो बाद में हुआ। इनिशियल जो था वो मूवमेंट ऑफ पीपल पे था कि मैंने कहीं से कहीं जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं रिक्शे पे जा सकता हूँ। टैक्सियां लाहौर में और पाकिस्तान में बहुत कम थी, ठीक है ना? मैं किसी के साथ बैठ के जा सकता हूँ, या मैं एक ऐप पे एक बटन को दबाता हूँ और एक गाड़ी आ जाती है, मुझे ले जाती है। अब उसके बाद जो है हर दफा अगर कोई आता है और कहते हैं जी मैं एक नए किस्म का उबर करीम लाऊंगा, तो वो कोई नई चीज नहीं है, ठीक है ना? पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आपके आइडिया को जब तक आप बताएंगे नहीं किसी को, तो वो किस बात पे इन्वेस्ट करने जाएगा, ठीक है ना? मुर्तजा ने उस पर टच किया कि आपका एक टॉप लाइन डेक है, उसमें आप बेशक टीजर कह लें, उसको जो भी कह लें, असल चीज जो आप प्रोटेक्ट करते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आपने प्रोटेक्ट करना है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? क्या आपने कोई नई टेक्नोलॉजी डिजाइन की है, क्या आपने कोई नई इन्वेंशन की है? उसमें जरूर आप जो है उसको प्रोटेक्ट करें, उसको कॉपीराइट कर लें पहले से, उसका पैटेंट फाइल कर लें आप उससे पहले से। उसके लिए जरूर है कि आप एनडीए साइन करें और कहें अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने बनाई क्या चीज है। वैसे डिस्कस करना कि जी इस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरा स्किल सेट है, एंड इवन द मनी, दीज आर जस्ट प्रोजेक्शंस, दे आर नथिंग मोर देन प्रोजेक्शंस कि जी मैं इस तरह जो है, मैं इतने मुझे पैसे चाहिए इस काम के लिए चाहिए,
ठीक है ना, वो है। कोई भी सीक्रेट सॉस की बात की यूसुफ ने और डिटेल्ड रेसिपी की बात की, वो बाद में आती है चीजें, ठीक है ना। पहली कॉन्वर्सेशन आपकी जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि एंजल से आपकी पहली मुलाकात होती है, या वो किसी समिट में होती है, या वो किसी इवेंट में होती है, या किसी ने कोई इंट्रोडक्शन करा दी आपकी, ठीक है ना, और वहां पर बैठ के आप बता देंगे जी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है। यही एयरलिफ्ट का देख लें, प्रॉब्लम क्या था। लाहौर जैसे शहर में जहाँ 1 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं, तकरीबन 50 लाख रोज डेली ट्रैवल करते हैं, घर से निकलते हैं, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, कोई काम पे जाता है, कोई मार्केट जाता है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी, और 2 जर्नीज है तो 10 मिलियन जर्नीज बन जाती है, ठीक है ना। तो ये थी असल चीज जिसपे यूसुफ ने भी बैठ के सोचा, और उन्होंने भी कहा कि हाँ वाकई यार ये तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसमें तो बहुत पोटेंशियल है। तो उसमें ये तो सबको पता था। आपको याद है कि हमारे पास NIC में एक कंपनी आई थी, न्यू सुभान वाले थे, दे उनका तो फैमिली का बिजनेस था ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है ना, लोगों को एक जगह, एक शहर से दूसरे शहर में ले जाने का। उन्होंने उस वक्त सोचा कि अगर हम लोगों को शहर से शहर लेके जा रहे हैं तो हम शहर के अंदर भी कर सकते हैं। और ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात, ठीक है। उस वक्त जो है उनको क्वालिफाई नहीं किया गया, बिकॉज उनके पास आगे का सवाल का जवाब नहीं था कि वो कैसे करेंगे। उस्मान के पास सवाल का जवाब था कि वो कैसे करेगा। तो आपके आइडिया में इतनी वैल्यू नहीं है, असल वैल्यू है उस प्रॉब्लम में, और फिर असल वैल्यू है कि आपका अपना जो है एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ क्या है। दूसरा आपने जो सवाल पूछा कि जी ये कैसे फुलफिल होगा, पाकिस्तान के इकोसिस्टम में ये प्रॉब्लम जरूर है, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड यही हमारी जो है ना, लेट्स से यही हमारी यूनिवर्स है। इसी यूनिवर्स से हमने ड्रॉ करनी है चीजें। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जो आउटलाइन यूनिवर्सिटीज से हैं, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज से हैं, जो टॉप लाइन आईवी स्कूल से नहीं पढ़ के आए हुए, जिन्होंने यूनिकॉर्न्स में नहीं काम किया हुआ, उनको तो एडवांटेज होगा, वो तो एडवांटेज के साथ आते हैं। लेकिन बहुत से अच्छे एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं जिन्होंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, उनके पास स्किल है कि उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर एंजल का रोल आता है, यहां पर एंजल का सही रोल आता है कि वो उस एंटरप्रेन्योर को समझे, उसकी अपनी स्किल को समझे, उसकी वैल्यू को समझे, और उसकी जो प्रॉब्लम लेकर आया वो उसको समझे। यहां पर फिर इंटरवेंशन जो है ना, जो हम कहते हैं स्मार्ट मनी, ये है स्मार्ट मनी प्ले, कि आप फिर उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं कि अब मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने जो है एक बिजनेस बना के मैंने एग्जिट किया हुआ है, मुझे अंदाजा है कि दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब मैंने रोल प्ले करना है ऑफ अ मेंटोर, राइट। सिर्फ मैंने पैसे नहीं देने, मैंने मेंटरिंग करनी है। उसमें कई दफा होता है कि आपके सामने जो एंटरप्रेन्योर बैठा होता है वो कोचेबल है या कोचेबल नहीं है, तो कोचेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। ये असेसमेंट बड़ी जरूरी होती है व्हेन वी आर असेसिंग। जैसे हमने कहा कि जी लोग इन्वेस्ट करते हैं लोगों में, ठीक है ना, आइडिया से ज्यादा, उस प्रॉब्लम से ज्यादा आप ये देखते हैं कि क्या ये वाकई ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा या नहीं कर सकेगी, या नहीं कर सकेगा और कर सकेगी, उस हिसाब से आप देखते हैं। स्मार्ट मनी का मतलब ये है कि आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनको उस जर्नी में आप हेल्प कर सकें, ताकि वो जो मेच्योरिटी उनको चाहिए वो आ सके। अब देखिए बहुत बड़े बड़े आपके जो यूनिकॉर्न्स हैं, जो डेकाकॉर्न्स हैं दुनिया में, राइट, दे वर वेरी यंग एंटरप्रेन्योर्स। मार्क जकरबर्ग ने तो किसी, कहते ना, मैकडोनल्ड में कभी बर्गर भी नहीं फ्राई किया, ठीक है ना। उसने कभी टेबल्स पे शायद उसने कोई वेटिंग की ऑन द टेबल्स, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ था, राइट। लेकिन उसको भी इन्वेस्टमेंट मिली, ठीक है ना। स्टीव जॉब्स ने भी कहीं काम नहीं किया हुआ था, ठीक है ना, उसको भी इन्वेस्टमेंट मिली। इलॉन मस्क ने किसी डेकाकॉर्न में काम नहीं किया हुआ था, किसी यूनिकॉर्न में काम नहीं किया हुआ था। सो देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरीथिंग। हमें पता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, ठीक है ना, इट्स अ नेसेंट इकोसिस्टम। इसमें लोग हैं जो आते हैं जिनके पास कई दफा एबिलिटी होती है कि वो एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और उनके पास वो सोल्यूशन जो उसका डिजाइन करना है वो भी होता है। इसलिए हम इनकरेज करते हैं कि जी सिंगल फाउंडर कंपनीज को अवॉइड करें अनलेस द फाउंडर इज एक्सेप्शनल, और वो कोई ऐसी इन्वेंशन लेकर आ रहा है या कोई ऐसी इनोवेशन लेकर आ रहा है बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। सो उसको तो आप देखें।
नॉर्मली आप टीम्स को देखते हैं कि जी इसमें टीम में बैलेंस है नहीं है, क्या 3 इंजीनियर्स हैं जिनको ये नहीं पता कि हमने रेन मेकिंग कैसे करनी है, हमने सेल्स कैसे करनी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। ठीक, so Adam, building on to the same discussion, if you would like to add anything into this point, if you feel कि आप ऐड करना चाहते हैं, alongside that, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, एक ऑडियंस में से क्वेश्चन है जो आई थिंक इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू एड्रेस। ऑडियंस में से किसी ने हमसे पूछा है कि बिजनेस डिग्रीज कितनी इंपॉर्टेंट हैं to run a startup or come up with a startup or run a successful startup. So एक तो वो आपसे Can we start laughing? so एक तो this is an important question कि we should address this in this panel. So एक तो ये है, और दूसरा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि एंजल इन्वेस्टर की हम बात कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या लानी चाहिए एंजल इन्वेस्टर की, क्या वैल्यू हमें देखने की जरूरत है कि वो ला रहा है बिसाइड्स मनी, और उसका क्या स्पेसिफिक रोल है व्हेन दे इन्वेस्ट, तो उसके बाद क्या करना चाहिए एक अच्छे एंजल को? Right, so the reason why I smiled was कि जो मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ फैसल, उसमें quite interestingly the entrepreneurs that I came across, उनको clusters में I would say I can divide those exciting people in clusters. एक cluster वो लोगों का है जो कि product के अंदर they are champions of the product, they are the champions of the technology, ठीक है, but unfortunately that is the reason, I'll be very frank, मेरी जितने भी serious discussions हुई entrepreneurs के साथ, and I had to sit with them and I had to think through with them कि अच्छा ठीक है product तुम्हारा okay, so अब मुझे बताएं कि market point of view से, commercial point of view से क्या impact create कर सकते हो आप। so वो एक challenge definitely है, business degree का उसमें होना जरूरी है कि नहीं, it does help, but I would say कि जिस तरह आप तरह के accelerators, incubators मौजूद हैं जहाँ पे आप लोग definitely घूम करते हैं business commercial standpoint से, या वो एक mindset देने की बात है, the business mindset वो definitely जरूरी है obviously to create a strong pitch to the investor, ठीक है, idea problem could be definitely people can recognize, people can relate to it, but eventually it has to have a commercial angle to it, ठीक है, to attract the investors money. So yes, it can help, and definitely if entrepreneurs have got access to the people, जिस तरह आप NICs हैं, जिस तरह एक ecosystem develop हो गया, तो definitely वो वहाँ से fill in कर सकते हैं, but they need to have a business mindset जो कि street smartness वाला element है, definitely उनमें होना चाहिए। एंजल इन्वेस्टर्स के अंदर आई वुड से जितना मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अभी, उसमें आई वुड से कि I have met people who have had angel investors जो कि बिल्कुल ही जिसको हम कहें कि हमारे ट्रेडिशनल एंजल इन्वेस्टर्स होंगे, जो कि there are people having lots of money, loads of money in Pakistan, but वो एक थोड़ा सेफ मेंटालिटी के साथ आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और फिर वो बिल्कुल ही माइक्रो हो जाते हैं, and their only focus is on the obviously जो कि रेंट सीकिंग वाला एलिमेंट बताया था मुर्तजा ने, या कि जो कमर्शियल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत वो स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, और बस उसके बाद फिर वो जीना हराम कर देते हैं जो आपके इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका। बट आई वुड से कि अब हमारी एंटरप्रेन्योर्स भी उनकी थॉट भी प्रोग्रेस कर रही है, एंड दे हैव क्रिटिकल, यहाँ पे फैसल ने भी, यूसुफ ने भी, आई थिंक ऑल ऑफ the people in the panel have mentioned this case, the entrepreneur must be very very picky in choosing an investor from the point of view कि क्या एक strategic value generate कर सकता है पैसे के अलावा, क्योंकि smart money की बात हुई और different इसको terms दी गई, but I believe कि पैसा आने के ऊपर सिर्फ इस चीज पे इक्तफा नहीं करना चाहिए हमारे entrepreneurs को कि भी पैसा मिल गया मुझे और खुश होना चाहिए, they should be worried about it कि पैसा डाल कौन रहा है, और उसकी जो है वैल्यू एडिशन क्या सिर्फ पैसे के ऊपर है, या वो डेफिनेटली एक मुझे जिस तरह कोई ऐसे डायमेंशन है जो मेरे अंदर वीक है, उस डायमेंशन पे भी मुझे वर्क अराउंड करके देगा, मुझे उसमें फर्दर ग्रो करेगा, ग्रूम करेगा, ताकि इनेबलिंग एनवायरनमेंट आई वुड से कि एक इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ पैसा नहीं देखें, आप उसे एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता देखें कि क्या वो कर सकता है। सो आई थिंक यू शुड लुक एट इट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के इन्वेस्टर के पास और एबिलिटीज क्या हैं और मुझे कहाँ पे वो वैल्यू ऐड कर सकता है। सुपर। सो कमिंग टू यू उमर, एक सवाल हमें
चैट में भी आया है एंड आई वांट टू बिल्ड ऑन दैट क्वेश्चन। एक सवाल तो यह है कि नेटवर्किंग के बारे में सवाल है। सो उसके दो पार्ट्स हैं। एक तो नेटवर्किंग पे आई थिंक NES में ऑलरेडी एक बड़ा अच्छा सेशन हो चुका है, पैनल हो चुका है। यू कैन ऑलवेज गो बैक और आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू उमर, where do you find these angels जो पाकिस्तान में, और where does the ecosystem stand अभी? कितने angels हैं, कितने syndicate हैं, और how to approach them and how to network with them? Very simply, देखिए पाकिस्तान में जैसे बाकी सारों ने कहा है, angels will be found around your incubation centers, your technology conferences, your different entrepreneurship summits, and it is that same thing that Yusuf had put on earlier about keeping that connection, and how he was connected to Sabah, and then Usman kept that connection, and then mentor-mentee connection. So the whole point around finding these angels or connecting with them is being able to network through different events, conferences, just keeping in touch, and not always saying, "Ji, dekhein, I need cash, I'm raising money." It is just touching base and just having that person follow your journey, right? So if someone is following your journey and they know what you're doing in any part in time, and as you are growing your business, you need to keep that network intact and consistently be in touch as well, being like, "Achha, this is what we're doing, this is what we're doing." And then when you're ready to raise the capital, then you go ask them. And also for angels, it's also dependent on when they would like to invest. Do they have cash at the time? Do they not have cash? It is not like a VC fund. They have a what do you call it? A pool of investors with a fixed pool of capital coming in, which is invested over a time period or horizon. An angel one day, and I'm sure Faisal can also add to that, but an angel one day might have cash to invest over the next 1 year. One day he might be like, "No, my cash is tied up in the businesses." But it's just keeping that constant connection and also keeping yourself relevant with the same people. I mean, that's my 2 cents. I think that's a very important point that you've raised. So building on to staying in touch and touching base and be on angels or investors radar. So Murtaza, आपकी तरफ मैं आता हूँ. I want to ask कि what's the best time, particularly when it comes to angel investment? तो सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है किसी भी स्टार्टअप के लिए, जब they should be thinking about, they should go and raise angel investment, and रेज करने से पहले कितने अर्सा पहले दे शुड स्टार्ट प्लानिंग एंड थिंकिंग अबाउट कि ये काम मुझे करना चाहिए और क्या, हाउ डू आई गो अबाउट इट? पर्सनली आई थिंक कि मैं तो यू नो जैसे आई बिलीव उमर ने भी कहा कि यू नो आप तब भी ना निकलें जब आपको पैसे चाहिए, यू नो, या जब आप पैसे मांग रहे हो। ये कांस्टेंट जर्नी है। एक स्टार्टअप की जर्नी के अंदर जब आपने स्केल करना होता है आपको पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। जब बेशक आप किसी एंजल इन्वेस्टर से लें या आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड में पीसी से रेज करें, तो यू नीड टू बी कनेक्टेड विद ऑल दीज पीपल और उनसे आप इन टच में रहें। ऐसी जगहों पर जरूर जाएं जहां पर आपको लगता है कि वो लोग वहां पर आए हुए होंगे, राइट, या इवन लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी एक वो विजिबिलिटी रखें, ठीक है। अब जो मेरा अपना पर्सनल ख्याल है, जो जब हमने जब रेस किया, या जो मैं शायद लोगों को मशवरा भी देता हूँ कि पहली बात यह है कि आप एंजल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सीख ना करें कि अगर आपका जो आइडिया है वो स्केलेबल नहीं है और वो कोई बड़े स्केल को अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। पहले तो आप नंबर 1 एक जो आपके पास की क्वेश्चन होना चाहिए ना, जिसको आप एंजल इन्वेस्टर कहते हैं एक स्टार्टअप के लिए। कन्वेंशनल बिजनेसेस के लिए एक अलग बात है, लेकिन पहली बात तो ये कि आपको पहले अपना जो प्लान है, जो आपका एग्जीक्यूशन है, उसमें ये नजर आ जाए कि अब आपने एक सर्टेन स्केल के ऊपर जाना है जिसके लिए आपको पैसे चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं अपने आप से क्वेश्चन करूंगा कि अगर मुझे ये पैसे ना मिले तो क्या मैं एज अ स्टार्टअप खत्म हो जाऊंगा? क्या मैंने अपनी रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लिया है? मैं शायद उस वक्त एंजल इन्वेस्टर्स को आ जाऊंगा जब मुझे अपनी वो यू नो ये नजर आ जाएगा कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और मैंने ये पैसे रेस करने ही करने हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन भी पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जी हम अगर जॉब कर रहे हो तो फिर हम स्टार्टअप कर रहे हो और फिर हम इन्वेस्टर भी कर रहे हो,
तो मेरा माइंडसेट जरा डिफरेंट है। आई थिंक ये स्टार्टअप की जर्नी के अंदर ना आपको फुल डाइव करना पड़ेगा, राइट? और जब आप फुल डाइव करते हैं तभी आपने आप अपनी रिसोर्सेज खुद भी खत्म करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मेरे पास ना 20,000 रुपए फेसबुक पर लगाने के लिए बूस्ट नहीं है, लेकिन आपने 1,70,000 रुपए का आईफोन पकड़ा होगा। ठीक है, ये मैं पर्सनली नहीं करूंगा। मैं ये करूंगा, मैं 1,70,000 रुपए का आईफोन 1,40,000 रुपए में बेच दूंगा। मैं वो 20-30,000 रुपए फेसबुक पर जरूर लगा रहा हूँ पर मंथ, और मैं उससे कोई ना कोई ट्रैक्शन या कोई ना कोई रिजल्ट सिखा रहा हूँ, राइट? सो पहली बात तो ये कि आप अपनी रिसोर्सेज को कंज्यूम करें और फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट रेज करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो रेज इट व्हेन यू रियली नीड इट। ठीक है, डोंट जस्ट रेज इट फॉर द सेक ऑफ रेजिंग इट। कुछ लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं, आइडिया बनाते हैं, और पहली चीज जो भूत सवार हो जाता है वो होता है कि जी हमने पैसे रेज करने हैं। इट्स नॉट, ये कोई शो ऑफ की बात नहीं है कि आपने पैसे रेज किए। पैसे रेज आपने जरूरत के तहत करने हैं और उनको स्पेंड करना है किसी किसी ऐसी चीजों के ऊपर जिससे आपकी जर्नी जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट हो जाएगी और आप किसी रिजल्ट तक पहुंचेंगे, आप किसी माइलस्टोन को अचीव करेंगे, आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, राइट? सो रेज मनी ओनली इफ यू रियली नीड इट, राइट? अदरवाइज अगर आपके पास रिसोर्सेज है, आप अपने पैसे डाल सकते हैं, आप वो जर्नी को कंटिन्यू करें। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है। अगर आप जितनी जल्दी पैसे रेज करते हैं, इसका मतलब है शायद आप अपने ज्यादा स्टेक्स को दे रहे होंगे इन अ मैनर के एक इन्वेस्टर जो है ना वो आपसे आपकी वैल्यूएशन का पूछेगा कि आपकी वैल्यूएशन क्या है। आपको वो अपने डेक के अंदर डिफरेंट मेथड्स थ्रू वैल्यूएशन दिखानी होगी, राइट? सो जब आप बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं तो इन्वेस्टर भी आपसे जो है ना डिफरेंट तरीके से वो हो सकता है आपसे कहे जी मैं आपसे 25% ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ डेविल इन्वेस्टर होंगे वो कहेंगे जी मैं तो आपसे 50% लेता हूँ, जिनसे आपने बिल्कुल दूर रहना है और पीछे हट जाना है। तो वो जो बात होती है कि 5%, 10%, 15%, मेरी अपनी पिछले साल की 2019 की जर्नी है जिसमें हमने पूरे साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाया। और जब हमने इन्वेस्टमेंट रेज की उससे पहले हमारे पास एक अदद इलेक्ट्रिक रिक्शा, एक अदद इलेक्ट्रिक बाइक और एक अदद इलेक्ट्रिक लाइट स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो एक छोटी गाड़ी आप कह लें, वो हमने तैयार की हुई थी। मतलब वो ये नहीं कि वो देखने में बड़ी खूबसूरत दिखती है, वो ढांचे तैयार थे, उसमें आप बैठकर उसको चला सकते थे। और जब हम इन्वेस्टर्स को लेकर आए, हमने कहा जी देखें ये हमने सारी टेक्नोलॉजी बना ली है, हमारे पास बॉश के कंट्रोलर हैं, हम बॉश के कंट्रोलर की एफिशिएंसी देखें और हमारे कंट्रोलर की एफिशिएंसी देखें जिससे आपकी मोटर ड्राइव होगी। तो ये देखें नंबर्स की बेसिस के ऊपर हम बॉश के कंट्रोलर से बेहतर हैं, राइट? That was enough for us to gain that confidence and they could see। और हमने कह दिया कि भाई हम हमारे पास अपने पैसे खत्म है, यहाँ से हमें आगे जाना है। और उस वक्त जो हमने अपने पैसे रेज किए तो हमने उनको 1% दिया फॉर एक करोड़ रुपए में। सो अगर हम पहले दिन करते जब हमारे पास ये सारी कोई चीजें ना होती तो आई एम श्योर वही इन्वेस्टर ना हमसे कहते जी मैं 20% लूंगा, मैं 25% लूंगा, बजाय कि वो 1% के। सो आप अपनी सेल्फ में आप अपने जो भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पैसे, अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप अपनी काबिलियत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं पर्सनली किसी स्टार्टअप को बिल्कुल पैसे ना दूं अगर वो मुझे कहे कि जी मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ और साथ में मैं 9 to 5 जॉब भी कर रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा। क्योंकि मैं कहूंगा कि भाई आपने अपने आप को बिल्कुल दीवार से लगा लेना और फिर पैसे मांगने। आई थिंक आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रेज किया है। वो ये कहते होते हैं कि when you don't make a decision, life makes a decision for you। तो अगर आप दो किश्तियों के सवार रहना चाहते हैं तो इवेंचुअली लाइफ पिक्स वन फॉर यू। या तो आप नौकरी करते हैं या फिर आप बिजनेस ही करते हैं, बट इफ यू डोंट मेक दैट डिसीजन योरसेल्फ, द इन्वेस्टर्स डोंट टेक यू सीरियसली इफ यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स बिकॉज दे आर ट्रस्टिंग यू विद देयर मनी। और अगर वो आपको अपने पैसे दे रहे हैं और दे फील के आप ही उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, so they're never going to give you money, give you their money। So coming back to एक question और किसी ने पूछा है that I'll myself quickly answer कि if I'm someone who has identified a problem and have designed solution but have no idea of developing professional business plans and financial plans, so yeah, it's very simple. Go out and find a co-founder who can do it for you because that's the best way. That's why that's what co-founders do. They should have complementing skills and that's what this relation is for basically। So coming to you Yusuf, what are your thoughts on किस वक्त typical, ये किसी ने हमसे audience में भी पूछा है, what are the typical angel rounds happening right now? That's the first question I have for you। and I also there's a very important thing अभी audience में किसी ने पूछी, but I see a lot of entrepreneurs struggle with this।
गिवन कि हमारा जो कल्चरल भी बैकग्राउंड अगर हम इसमें शामिल कर लें, आस्किंग टफ क्वेश्चंस about the angel when you're talking to them, and I'll translate them intentionally into a harsher tone कि भाई आप हैं कौन. I know that's not you're supposed to ask them, but underlying in our cultural implication we think कि जब मैं किसी से पूछूंगा कि आपने इन्वेस्टमेंट्स किस में किए हैं पहले, हाउ कैसी वो रही इन्वेस्टमेंट्स, तो मैं अगले बंदे से पूछ रहा हूँ कि आप हैं कौन. So ये दो questions I want you to talk a little bit about it, and Faisal, then I will come to you with the same question कि how to take this conversation up with the angels or investors. जी सर. जी देखें, आपने जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो बड़ा वैलिड है कि जो entrepreneurs हैं they need to ask, they also need to get to know about the investors, उनका background, उनकी previous investments, कौन कौन सी journeys उन्होंने experience करी हुई है. तो asking those tough questions are very valid. Usually they become easier अगर angel आपके पास खुद चल कर आया है. अगर आप एंजल के पास गए हैं तो थोड़े से ये टफ क्वेश्चंस, इसका मतलब है आप अभी आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपसे अट्रैक्टेड नहीं है, तो वहाँ ज़रा सा मुश्किल हो जाता है. अगर आपने शुरू में कुछ इतनी ट्रैक्शन ले ली है, आपका आइडिया इतना अच्छा है कि अब एंजल्स आपके पास आ रहे हैं, तो देन यस यू कैन बी अ लिटिल बिट मोर अपना पिकी एंड आस्क दीस टफ क्वेश्चंस. वैसे भी आप पूछ सकते हैं और आपको पूछने चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, ज़रा आजकल यही है कि this is a pretty trending segment, startups, entrepreneurship, so there are a lot of people, उसके अंदर टाइम वेस्ट होने का भी काफ़ी खतरा होता है, स्पेशली फॉर entrepreneurs जिनके पास टाइम बड़ा कम होता है. they need to be out there अपने executing their idea rather than बैठ के सिर्फ ड्राइंग रूम्स में लोगों को अपना पिच ही करते रहें. and coming back to the investment scene, देखें, I think it's still tough. I work again, आप लोग तो खैर बहुत सारे अपना क्या बोलते हैं एक्सेलरेटर्स में बैठे हुए हैं, इंक्यूबेटर्स में बैठे हुए हैं, तो you have created एक वही एक किस्म की क्या बोलते हैं असेंबली लाइन अपना बनाने में आप लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं ओवर द लास्ट 5 to 7 years, जहाँ पर गाड़ियाँ तो बहुत निकल के आ रही हैं या प्रोटोटाइप्स, मगर उनको ख़रीदने वाले कम. तो पहले ये था कि वो प्रोटोटाइप्स ही कम होते थे और इन्वेस्टर्स अपना बैठे होते थे कि इन्वेस्ट करें. तो अब ये हो रहा है कि ज़्यादा डेक्स, ज़्यादा आइडियाज़, ज़्यादा जो भी है कॉम्पिटिशन्स एंड टीम्स बाहर आ रही हैं लुकिंग फॉर मनी एंड इन्वेस्टमेंट. मैं नहीं समझता कि अभी भी सीरियस इन्वेस्टर पाकिस्तान में अभी भी चैलेंज है. अब तो खैर पूरी दुनिया में चैलेंज हो गया है, ये अपना कोविड के बाद तो the whole landscape has changed tremendously. और एक और मैं हर एक को वार्न करूँगा कि पहले जो हम भी कहते थे कि जी रेंट सीकर से दूर रहो, देखें वो हम उसको सेठ कहते हैं, उसकी सेठ मेंटालिटी है, वो कहता है मुझे तो प्रॉफिट दिखाओ. मगर आज देखा जाए तो मेरे बहुत सारे सेठ दोस्त हैं, मैं अपना कराची का बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, अपना इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के अंदर ही मेरा सारा बचपन गुजरा है. तो पहले हम उनकी तरफ देख के अपना हंसते थे कि यार इनको आइडिया ही नहीं है कि ये स्टार्टअप की दुनिया क्या है. आज वो हमको देख के हंस रहे हैं कि जो हम कहते थे वो दुनिया के अब टॉप वीसीज यही कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी और पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी हमें दिखाओ. तो इट्स अ वेरी वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट कि वो 10 साल से मेरे बहुत सारे कॉलीग्स जो कि सेठ हैं, वो मेरी इन्वेस्टमेंट्स और मेरे इकोसिस्टम को देख कर उसका सिर्फ वो अपना साइड लाइन्स पर जायज़ा लेते रहे हैं. और इवेंचुअली उसमें से उस जायज़े में से उनको यही समझ में आया कि नहीं यार, हम जो अपना काम करते हैं रेंट सीकिंग वाला वो ज़्यादा सेफ है. और आज दुनिया के तमाम टॉप वीसीज और ऊबर जैसी कंपनियां भी राइट आर एट द वर्ज कि वो आगे एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी. तो अब हर कोई वही सेट वाला सवाल पूछ रहा है कि पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, सस्टेनेबिलिटी है या नहीं. उस लिहाज से द गिवन दिस ईयर और इवन लास्ट ईयर से सेंटिमेंट ऊबर की लिस्टिंग के बाद सेंटिमेंट पूरी दुनिया में चेंज हो गया और ये नेवर एंडिंग लॉस मेकिंग ग्रोथ प्लेस जो हैं उनका टाइम अब एक किस्म का ख़त्म होता जा रहा है. तो आज का ये जो हमारी टीम जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी एक वार्निंग है कि देयर इज़ मोर जगलिंग एंड इट्स अ मोर बैलेंसिंग एक्ट दैट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम देम. यही वीसी, यही एंजल इन्वेस्टर अब सेट वाली बात करेगा कि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है या नहीं, उसके साथ साथ वो ग्रोथ भी मांग रहा है. तो अब आजकल के एंटरप्रेन्योर के लिए इट इज़ इवन अ मच बिगर चैलेंज
how to go about. तो उस लिहाज से money is still tough to get. मैं आपको मैं अभी भी आई थिंक अभी मैं सैरी करूँगा न्यूयॉर्क में, और उसके बाद कम से कम 3 डिफरेंट स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स जो है ना वो मेरे साथ आधे घंटे के लिए बुकड हैं सैरी के बाद मैंने से पाकिस्तान में बात करनी है. एवरीबडी इज आउट, दे आर गुड पीपल, बट मनी इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. ये जो आजकल जो yes some good VCs have come into Pakistan or have claimed that they have monies to spend in Pakistan, but I think they'll be very selective and free money is not there, so it's going to be very very tough. So Faisal, your opinion on the ticket sizes and angel rounds and also कि जो tough conversations हैं but crucial conversations हैं with the angel, कैसे इनको, if you can give us some examples कि how would you put up a question to an angel asking them about कि उनका background क्या है, उन्होंने क्या क्या investments की हैं, and how well those investments did, or what was the role they brought into that investment. अच्छा, इसमें 2-3 चीजें. I want to touch a bit on what Murtaza had said and what Yusuf has just said in the question you've asked. So it is crucial कि आपकी टाइमिंग जो है, किस टाइम पे आप जाते हैं and you start conversations. कुछ conversations जो है वो अर्ली शुरू हो सकती हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके पास MVP हो. अगर आपके पास एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है तो आपके पास जस्टिफिकेशन है कि आप एक कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं फॉर एन इन्वेस्टमेंट. हम नॉर्मली कोच करते हैं, पुटिंग ऑन माय इंक्यूबेटर हैट, कि आप पहले वैलिडेशन जरूर करें. आप वैलिडेशन दिखाएं, आपको थोड़ी सी ट्रैक्शन भी दिखाएं. थोड़ी सी ट्रैक्शन का मतलब यह है कि जो अभी आपने यूसुफ ने अभी जो बात की, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, यूनिट इकोनॉमिक्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती जा रही है. स्टेट पर्सपेक्टिव और रेंट सीकिंग इज अ डिफरेंट थिंग. पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी इन माय व्यू इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? कि जी आप यूनिट इकोनॉमिक्स जो है उसको देखना शुरू करें. एब्सोल्युटली राइट कि वो जो बिजनेसेस थे कि जी अगले 5 साल जो है लॉसेस ही होंगे, बस ग्रोथ ही ग्रोथ होगी और बस आप पैसे देते जाएं और आप $500 मिलियन और $1 बिलियन और $2 बिलियन डालेंगे तो तब भी शायद प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन ग्रोथ हो रही है. दैट्स अ डिफरेंट जर्नी. हम जिस एनवायरनमेंट में हैं तो यहाँ बहुत जरूरी है कि आपकी वैलिडेशन और आपकी अर्ली ट्रैक्शन वो बड़ी क्रिटिकल एलिमेंट हो जाता है. अगर आपके पास वो बैकग्राउंड नहीं है, लेट्स से आप उस्मान गुल नहीं है, आप इंसियाड नहीं गए हुए, आपने डोडैश में काम नहीं किया हुआ, आपने वो 10 साल 8 साल की जर्नी नहीं की, ठीक है ना, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें आप उसको वैलिडेट करें. ठीक है ना. मुर्तजा ने जो बात की कि मेरे पास 3 प्रोडक्ट तैयार थे, राइट? आप बैठ सकते थे, आप मोटरसाइकिल चला सकते थे, आप जो है वो रिक्शे में बैठ सकते थे, आप छोटी गाड़ी में बैठ सकते थे, तो आपके सामने एक टैंजिबल प्रोडक्ट था. बहुत सी सर्विसेज लेड मार्केट प्लेसेस ये जब आती हैं उनके पास उस किस्म की वैलिडेशन नहीं होती, एक प्रोडक्ट नहीं होता जिसको आप हाथ लगा सकें, बैठ के देख सकें, खुद ट्राई कर सकें. आपने मार्केट प्लेस को देखना है, आपने वो सर्विस पैकेज को देखना है, तो सर्विस पैकेज में क्या अपॉर्चुनिटी है. पैसे रेस करना जो है वो हमेशा टाइमिंग के साथ होना चाहिए क्योंकि हर पैसे की कॉस्ट होती है. ठीक है ना. मुर्तजा ने आपको कहा कि मैंने सिर्फ 3% दिए हैं और मैंने तकरीबन 3 करोड़ रेस किए हैं. ठीक है ना. तो ये इस वजह से है क्योंकि उनकी प्रोडक्ट और वो कौन सी चीज को एड्रेस करने जा रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है. तो टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वैल्यू जो है. हमने इस पे काम भी किया हुआ, आपको पता है कि हमने कुछ वीडियोस भी डाली थी कि जी एक स्टार्टअप आता है, वो कहते हैं जी मेरी वैल्यूएशन क्या है, आप कहते हैं तुम्हारे पास प्रोडक्ट है नहीं जी अभी तो बन रही है, तुम्हारे पास कस्टमर है नहीं सर अभी तक तो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं गई है, तुम्हारे पास रेवेन्यू है नहीं सर, जब कस्टमर नहीं है तो रेवेन्यू भी नहीं है, मेरी वैल्यूएशन क्या है. तो आप कहेंगे आपकी वैल्यूएशन जो है वो छनकना ही है, राइट? सो उस हिसाब से या तो आप कोई इजाद लेकर आए ना, या तो कोई इन्वेंशन लेकर आए. आप ऐसी इन्वेंशन हो जो पहले किसी ने की नहीं हुई, कोई इन्वेंशन नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है पहले से, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो सीड राउंड या अर्ली राउंड की वैल्यू है वो पाकिस्तान में रेंज कर रही है बिटवीन 1 to 3 करोड़. ठीक है ना. ये नॉर्मली जो है ना सीड राउंड जो है वो 1 से 3 करोड़ तक जा रहा है. इसी गेड़े में आते हैं सब. हम लोग जो है कोचिंग कर रहे हैं अब, या हम कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द इंक्यूबेटर एंड, एटलीस्ट NIC लाहौर में, कि हमें एक प्री सीड स्टेज भी चाहिए. हमें वो भी एंजल्स चाहिए
जो शायद इंडिविजुअली नहीं बट एज अ पूल एक फंड क्रिएट करें जो प्री सीड स्टेज के लिए हो। वो जो इनिशियल प्रोडक्ट की मेकअप चाहिए, उसकी प्रोडक्ट की उसकी रिफाइनमेंट चाहिए, एमबीपी चाहिए, वहां पर अगर इन्वेस्टर के पास उसके एंटरप्रेन्योर के पास पैसे नहीं है और सीड स्टेज चाहिए, लेट्स से बिटवीन 25 to 50 lakhs, वो सीड स्टेज या प्री सीड स्टेज इन्वेस्टमेंट, मैं उसको प्री सीड कहूंगा नॉट सीड, वो प्री सीड जो है उसकी एक रिक्वायरमेंट है, राइट। तो वहां पे भी देखना है। फिर दूसरी बात यह है कि हम अब इनकरेज कर रहे हैं कि जो बहुत अर्ली स्टेज है उसको आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट ना करें, उसको आप सेफ के कॉन्सेप्ट में करें, विच इज अ सिंपल एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर इक्विटी, जो वाई कॉम्बिनेटर करता है, राइट। वाई कॉम्बिनेटर जो है ना वो इनकरेज करता है कि आप सेफ करें। हमने चेक भी किया है फ्रॉम द लीगल पर्सपेक्टिव, दोज एग्रीमेंट्स आर वैलिड इन पाकिस्तान आल्सो। उससे होता ये है कि ये जो आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है कि जी आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है और मैं किस कॉस्ट पे आपको इन्वेस्टमेंट दूंगा, तो वो थोड़ा सा साइड पे हो जाता है। इस पे मैंने उमर से भी, उमर नोज की मैंने उमर से डिस्कशन की थी फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, और मैं इसी बात पे आर्ग्यू कर रहा था उमर के साथ कि इसको सेफ के कॉन्सेप्ट में करें। रीजन उसका ये है कि आगे आपने जाना है, आपने सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट लेके बैठ नहीं जाना, ठीक है ना। दैट मे नॉट गेट यू वेयर यू वांट टू गेट टू, यू मे हैव मल्टीपल राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपने इनिशियल स्टेज पे बहुत ज्यादा इक्विटी दे दी तो आपको आगे जाके जो है ना प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, राइट। सो ये एक एलिमेंट है। कई दफा ये होता है कि इन्वेस्टर की जो वैल्यू होती है दैट इज बियॉन्ड द मनी दैट दे आर ब्रिंगिंग इन, वहां पर हमें समझ में आती है कि वहां पर जो है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और कई दफा उसमें ज्यादा Faisal, let's if you can now jump to, because वो बहुत important element and I want to address it. Give us some specific examples, because this is the challenge बहुत सारे startups को face होता है कि tough questions कैसे पूछे जाएं एंजल से कि भाई आपने किस में इन्वेस्ट किया है, आपका अपना बैकग्राउंड क्या है, आपकी सक्सेस क्या है, किस तरह का रोल प्ले किया आपने, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया था तो आपने कैसे रिजॉल्व किया है। हाउ डू यू पुट दोज क्वेश्चंस अक्रॉस सो दैट यू फील कि यू नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, या कोई और भी जो है वो ऑफेंड नहीं हो उससे। अच्छा, यूसुफ ने इसको टच किया। यूसुफ ने कहा द एंजल हैज वॉक्ड अप टू यू, वो तो तब तो आप सवाल पूछ सकते हैं। But if the angel is not walked up to you, or you walked up to the angel and you've gone to, let's say, a conference, or you managed to, somebody's come to the incubator and you've then been introduced to that angel, तो आप इनिशियल फर्स्ट स्टेज में तो आप ये सवाल पूछ नहीं सकते कि जनाब आप हैं कौन, आप हैं, आपका पैसा, आपने पैसा कैसे कमाया, वो नैब का काम है। आपका काम नहीं है कि आप पूछेंगे जी आपने पैसा कैसे कमाया, बट आपने अपना होमवर्क जरूर करना है। जब आप किसी एंजल से मिलते हैं तो पहली इंस्टेंस में तो नहीं आप डिसाइड कर लेंगे ना कि भाई मैंने इसी के पैसे लेने, आपने अपना होमवर्क करना। बहुत जरूरी है कि आप होमवर्क करें। आप जरूर देखें कि उस एंजल की इन्वेस्टमेंट्स क्या उसकी पहले कोई इन्वेस्टमेंट है, अगर नहीं है तो ये पहला आपके लिए जो है ना एक फ्लैग है कि आपने ये चेक करना है कि वो क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहा है। वो अगर ट्रेडिशनल बिजनेस से पैसे लेकर आ रहा है और वो अब स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो आपको ये तो चीज पता है कि उसका पहला एक्सपीरियंस नहीं है स्टार्टअप्स के साथ, ठीक है ना। तो आप ये रेड फ्लैग है, इसको आपने एक्सप्लोर करना है। अगर वो रेगुलर इन्वेस्टर है और आपको पता है कि जो इकोसिस्टम में उसने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तब आपने देखनी है कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो किस किस्म की है और किस चीज में की है, और उसकी अपनी जो है इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है, वो किन चीजों में इन्वेस्ट करता है। क्या वो डीप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है, क्या वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, क्या वो ब्रिक एंड मॉर्टर कंबाइंड विद डिजिटल में इन्वेस्ट करता है, वो क्या सोचता है और किस तरह से वो इन्वेस्ट करता है। तो ये दिस इंफॉर्मेशन इज नॉर्मली अवेलेबल। स्टार्टअप्स का अपना एक नेटवर्क है। अगर आपको पता है कि जी इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है पहले, रीच आउट टू दोज फाउंडर्स एंड हैव अ कन्वर्सेशन विद देम आल्सो, राइट। दे विल बी एबल टू टेल यू। नॉर्मली जो इस किस्म के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो पैसे रेज कर चुके होते हैं, उनमें कोई वजह होती है जिसकी वजह से उनको पैसे मिले, राइट। सो एक तो वो आपके पास है। दूसरा ये है कॉन्वर्सेशन, जिसे हम क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस कहते हैं। आप पूछ सकते हैं सवाल, तरीके से आप पूछें कि जी आपकी पहली आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्यों, जैसे मैं हमायूं मजहर से मैंने पूछा था कि हमायूं यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट, आप क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट, आप मुल्तान डीएचए में 4 प्लॉट्स ले रहे हैं, आप कहीं और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लें,
ठीक है ना, तो आपके पैसे तो सेफ होंगे और आपको रिटर्न भी मिलेगा उसको। तो हमायूं का जो रीजन था वो ज्यादातर जो है वो लेगेसी है, राइट, ही वांट्स अ लेगेसी। तो दैट्स अ गुड रीजन टू हैव कि जी एक बंदा है जिसका एपेटाइट भी है और वो लेगेसी, वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है ना, इसलिए वो एंजल है। उसका जो पर्सपेक्टिव है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि वो क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो ये आपने जरूर देखना है, ये क्रूशियल कॉन्वर्सेशन आपने जरूर करनी है, तरीके से करनी है। जो पहले भी बात हुई, अब मैं एक स्टार्टअप को जानता हूँ, वो 4 साल जो है अपने बिजनेस को बिल्ड करते रहे, राइट, उसमें वो खुद ही काम करते रहे, बूटस्ट्रैप करते रहे, ग्रो करते रहे, ट्रैक्शन करते रहे, लेकिन कंटिन्यूअसली वो 3-4 एंजल से इन कांटेक्ट रहे, रेगुलरली उनको बताते रहे कि अब हम स्टेज पे पहुंचे हैं, अब हम स्टेज पे पहुंचे हैं, पिछले क्वार्टर में हमारी ये हमारा रेवेन्यू था, इस क्वार्टर में हमारी ये ग्रोथ हुई। इवेंचुअली they were called in by an investor, they were called in by Abu Bakr, right, and they got their investment. Now they will have a venture fund, right, also backing them. तो ये continuous एक process है, एक दिन में नहीं होने लगा, right? It's very rare कि आपको by chance किसी शादी पे गए थे, आपके साथ कोई आके बैठा, या आप एक जहाज में बैठे थे, आप एक बस में बैठे हुए थे, साथ वाला जो था उसके पास जो है ना $5-6 मिलियन फारिग पड़े हुए थे, और उसने कहा यार यू लुक गुड टू मी, ठीक है ना, जो तुम बता रहे हो बड़ा जबरदस्त तुम्हारा आइडिया है, कल आओ मैं तुम्हें चेक लिख देता हूँ। उससे चेक ना लीजिएगा पता कीजिएगा ये कौन है, ये इसकी पहले इन्वेस्टमेंट्स किस किस्म की है, इसका बिजनेस किस किस्म का है, कहीं ना कहीं से तो पैसे आए हुए हैं ना, तो वो तो आप रिसर्च कर सकते हैं। बहुत दफा हम बताते रहते हैं अपने फाउंडर्स को कि आपने सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन सीकिंग जो है वो आपकी एक की जो है ना पर्सनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। ठीक हो गया। We are almost at the end of the panel discussion and there are so many questions that are in my mind जो मैं पूछना चाहता हूँ। So थोड़ी सी हम लिबर्टी लेंगे, not we won't go over by a big margin, शायद 5 मिनट हम ऊपर हो जाएंगे। So क्विक आंसर्स चाहिए होंगे आप लोगों से। कुछ लोग सवाल करें, कुछ अपने बिजनेस से बहुत स्पेसिफिक सवाल करें, so we are really sorry वो हम एंटरटेन नहीं कर सकते। If you want advice on your business तो वो इम्पॉसिबल होगा एक पैनल डिस्कशन में। But someone asked a question, और आदम आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। I'll add some more detail into it. ट्रांसपेरेंसी पे और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के माइंड में कि अभी तो हम खुद ही चला रहे थे तो हमने कोई हिसाब किताब नहीं रखा, तो अब आपने ड्यू डिलिजेंस की बात की तो हम अब कहाँ से हिसाब लाएं और कहाँ से बताएं कि हमने क्या किया। एंड कपल्ड विद दैट अनदर क्वेश्चन कि अच्छा मैं एक फाउंडर हूँ और मेरा को फाउंडर अर्ली स्टेज स्टार्टअप हूँ और वो छोड़ गया स्टार्टअप को, how do I make my investors comfortable कि यार अब ये चला गया whatever the reason was, and what do they think of me अगर मेरे को फाउंडर छोड़ के चले गए हैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। राइट, ट्रांसपेरेंसी इज अ मस्ट। और जिस तरह आप फैसल बता रहे थे कि अब जो एनवायरनमेंट चेंज हो रही है सबको पता है, और पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी और ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है और जो ट्रांसपेरेंसी इनटू द बिजनेस ऑपरेशंस जो है, आई वुड सी कि गोइंग फॉरवर्ड जो एंजल हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो दे विल वांट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इनटू द बिजनेस एज पर देयर ओन कन्वीनियंस। जब भी मेरा दिल किया मैंने देखा ऑपरेशन सही रन हो रहे हैं, सो आई बिलीव कि ये जो मल्टीनेशनल से थोड़ा बहुत एक इनपुट आती है कि जिस तरह पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने आप को अब अपने सिस्टम्स इन प्लेस कर रही हैं ताकि ट्रेसेबल रहें ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, वो मस्ट है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन इन्वेस्टर ऑन बोर्ड, सो यू शुड बी वेरी मच विलिंग कि यार मेरी जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, माय रेवेन्यूज, माय कॉस्ट, वेयरएवर आई एम स्पेंडिंग, ये सारा। इवन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वुड से कि वो जो आपका एक कॉन्फ्लिक्ट आता है विद योर पार्टनर इन द फाउंडिंग पार्टनर, आई थिंक कि वो एक बड़ी हेल्दी एनवायरनमेंट होनी चाहिए। एक तो सिस्टम्स शुड बी इन प्लेस, फाइनेंशियल सिस्टम्स ट्रेसेबल, ठीक है, जब किसी ने देखना चाहा वो सिस्टम की बिजनेस ऑपरेशंस में देखे। आपकी फ्रीक्वेंसी आप यू कैन डिफाइन विद योर इन्वेस्टर, उस पे आप क्वार्टरली, 6 मंथली थोड़ा बहुत एक बिजनेस रिव्यू दे दें उनको, थोड़ी बहुत बिजनेस आउटलुक दे दें, ताकि they should be on board and their confidence should be on you at all times। और अगर कोई इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आ रहा है कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट विद माय पार्टनर जो है वो at any stage is it active or it is not active, those issues should be brought onto that board of directors table. It is a must, I would say, especially in these tough times जहाँ पे जिस तरह फैसल ने अगेन कहा कि free money is not available,
और थोड़ी स्ट्रिंजेंट जिसको कहते हैं कि डिसिप्लिन जो है लाना अपने आप में और फायदा होगा। जिस तरह यूसुफ ने कहा कि आगे अगर आपके बिजनेस के अंदर किसी ऑडिटिंग फर्म ने आके इवेंचुअली करनी है, आपकी ड्यू डिलिजेंस करनी है, so if these systems are there in place the first day, तो I would say कि it is आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना आपकी जिंदगी अजाब है आगे। So this is my take on Absolutely. I'll just sort of like summarize this, जो यूसुफ ने भी कहा था और आदम ने भी कहा था कि अगर आप if you're not managing your affairs properly, so the message that investors get is यार अगर ये इतने स्केल पे स्टार्टअप नहीं चला सकता तो ये स्केल करके स्टार्टअप को कैसे चलाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इफ अगर ये अपने पैसे ऐसे मैनेज कर रहा है तो मेरे पैसों का क्या असर करेगा। एंड दीज आर वेरी प्लेन सिंपल सिग्नल्स दैट एन इन्वेस्टर गेट्स अगर आप अपनी खुद अफेयर्स को अपने स्टार्टअप अफेयर्स को और अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज नहीं कर रहे प्रॉपरली। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डू दैट। Murtaza, very quickly, I know you have talked about this in the chat as well. Give us a couple of examples, 1, 2, 3. एक एंजल इन्वेस्टर की क्या 3 कोर बेनिफिट्स हैं अदर देन मनी, दो जो ठक आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ये तो मुझे अवेल करने ही करने और ऐसा इन्वेस्टर देखना है जो ये करता हो। नंबर 1 तो उसकी गाइडेंस और विजडम, ठीक है, कि वो जो इन्वेस्टर, क्योंकि यूजुअली इन्वेस्टर्स अर्ली स्टेज के ऊपर आते हैं और हमें सिर्फ ऐसा इन्वेस्टर नहीं चाहिए जो पैसे दे और बस खामोश हो जाए। सो विजडम एंड गाइडेंस इज वेल, बिकॉज इन्वेस्टर्स यूजुअली ब्रिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इज वेल, लेकिन जो उनकी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे आप जरूर लर्न करें। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज हिज नेटवर्क, राइट। ये वो नेटवर्क, मतलब आप जब एक इन्वेस्टर से काम करते हैं तो आप ऑलरेडी उसके सारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, right? And that access can provide you opportunities, it can provide you customers, it can provide you some connections जिसकी वजह से आप कोई हो सकता है पायलटिंग कर रहे हो, आप कोई पार्टनर कर रहे हो, राइट। फिर थर्ड चीज ये होती है कि जैसे सपोज करें कि जैसे यूसुफ साहब का टेक्नोलॉजी पर बैकग्राउंड है, कोई उनकी एक सर्टेन पोजीशन होगी, उस पोजीशन से वो डायरेक्टली आपके स्टार्टअप को क्या चीज वो प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो ये 3 चीजें मेरे ख्याल से विजडम एंड गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्सनल कंट्रीब्यूशन। जैसे हमारे एक इन्वेस्टर हैं जो ऑटोमोटिव इंजीनियर है, राइट। सो वो पर्सनली हमें बहुत ज्यादा गाइड करते रहते हैं प्रॉब्लम्स के साथ और चीजों के साथ। सो ये अगर आपको 3 चीजें मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। ठीक, उमर, आपसे मैं इकोसिस्टम से रिलेटेड एक सवाल करना चाहता हूँ। वेयर डू यू सी द इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम गोइंग, keep accounting for COVID and not accounting for COVID as well, foreign investment या angels, because local एक इकोसिस्टम शुरू होता है, लोकल इन्वेस्टमेंट शुरू होती है तो फिर बाहर से भी पैसे आना शुरू होते हैं। मैजिकली बाहर से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती अगर लोकल इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। Where do you see, given कि पाकिस्तान में if you look at other fronts, stock market की growth for instance in USD has been relatively flattish and bonds में interest rates जो हैं वो क्योंकि they are very high, so the focus is there to invest. Where do you see that startup will get attention from international money coming in angel stage pay or later stages maybe in the next few years? I mean, I've been coming to Pakistan as an investor since 2012 to पहले सिर्फ Plan 9 और Plan X होता। पिछले 5 साल में हम सारा इकोसिस्टम को खुद ही देखा है बढ़ते हुए, right? Last year you saw Airlift, Cheetah, all these companies raise capital. Last week you heard Zameen parent company raise $150 million. So in terms of the fundamental is your 220 million people and your median age of 27 and your 90 million people using smartphones. उसके basis पे ये ecosystem आगे ही जाएगा, right? Taking into account COVID will be a very different world. Traditional businesses, for example, a bank that was operating 1,500 branches realized कि हम 300 branch में उतनी efficiency से काम कर सकते हैं, and we can digitize and we don't need physical branches. So taking COVID into account, traditional sectors and industries will be impacted, but at the same time, the ecosystem will be growing because, I mean, even the last 3 months, everyone has been forced to work from home, or this conversation we're having today on Zoom as well, with over like 100 participants, shows that people are actually willing and
willing to do that. From the back of that, I mean, you will just see more and more international names from the Middle East, from Europe, from the US, more larger institutional venture capital firms wanting to come into Pakistan. Because previously, those firms like KKR, TPG, Blackstone have already been inside India, Africa, Turkey, and other emerging markets like Mexico and Latin America. अब पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अगले साल में वही देखोगे कि those firms will start coming in to the country. So in terms of ecosystem, it's just going up. I mean, that is my bullish opinion. See, so Yusuf, coming to you and very quickly again, because we are out of time, so perhaps I have only a couple of questions that I can ask. Where do you see, Faisal ने बात की, SAFE की बात की, where do you see कि what's the perfect instrument to invest in early stage startups? Founders की क्या expectations होनी चाहिए when they're going for an angel round? What kind of terms they should be working on with investors? And angel stage पर, do you think कि the investors should poke their nose into founders' conflicts and daily affairs of the business, and how has your experience been doing that and not doing that? So yeah, I think again, right, typical advice to यही होती है कि convertible notes and safes are, you know, the best way to raise investment at the earliest rounds. It just sets you up, आपका जो startup है और आपका जो investment folder जो है, that looks good आगे वाले rounds के लिए, कि आपने convertibles के ऊपर cap और discount के ऊपर आपने फंड्स रेस किए हैं और अभी आप अपने कैप टेबल पे किसी को लेकर नहीं आए हैं, तो इट्स अ प्रीटी क्लीन कैप टेबल आपका रहता है. फाउंडर्स होते हैं, एक आपका क्या होता है, ईसॉप की एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस की एलोकेशन होती है, एंड दैट्स अबाउट इट. और सब कुछ सीरीज ए पे जाके कन्वर्ट होता है इनटू शेयर्स. तो आइडियली तो यही अपना प्रेफर किया जाता है कि आप कन्वर्टेबल्स करें. आई थिंक पाकिस्तान में अब आई थिंक जो SECP वगैरह ने शायद कन्वर्टेबल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को भी अलाउ कर दिया है. अदरवाइज बहुत सारी स्टार्टअप्स, हम ये एयरलिफ्ट की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, ईट मुबारक की बात करते हैं, मोस्ट स्टार्टअप्स हैव पेरेंट एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड. तो यू नो यही फंड रेजिंग ही की वजह से और आगे जाकर रिपैट्रिएशन की वजह से. तो ये भी देखना होता है कि आपने अपनी पेरेंट एंटिटी पाकिस्तान में ही रखनी है या आपने अपनी पेरेंट एंटिटी बाहर रखनी है. तो ये ख्याल करना पड़ेगा आपको. और कन्वर्टेबल्स आर यूजुअली द बेस्ट. मगर एक तरफ से मैं आपको बताऊं कि सम ऑफ द स्मार्टेस्ट एंटरप्रेन्योर्स जिनकी हम अभी एग्जांपल्स ले रहे हैं, वो बड़ी जल्दी एडवाइस करते हैं कि जी अगर इफ़ यू बिलीव इन योर आइडिया एंड इफ़ यू हैव यू नो एंड द टाइमिंग इज़ राइट, तो आपको पहले एंजल या सीड राउंड तक 20-25% डाइल्यूट भी करना पड़े तो आप करें, बट आप एक्सिक्यूट करें और आप ट्रैक्शन लेकर आएँ और आप उसके आगे के राउंड्स में देन यू विल मेक अप फॉर सम ऑफ द इक्विटी दैट यू हैव गिवन इन एडवांस. There are many ways to this अपना puzzle, you know, and the pieces fit in very, very different ways. ठीक. So coming to you, Faisal, what we've talked about angels and we've talked about devils. There is a pattern there, and particularly startups के perspective से ये सवाल मैं करना चाहूँगा. How big of a red flag do you see कि जब कोई आपके पास investor आता है और वो आपको terms नहीं देता, बट कहता है मुझे बताओ मैं किन terms पे invest करूँ तुम्हें? Is that a good thing? Is that a bad thing? Should you run away once you hear this sentence? You should be definitely very. आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ये इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव तो होता है, उसकी अपनी थीसिस होती है, उसका अपना एक तरीका होता है. और अगर वो तैयार नहीं है कि आपको टर्म्स ऑफर करें, वो आपसे कह रहे हैं कि आप टर्म्स मुझे बताएं, तो दैट्स अ रेड फ्लैग. हम तो उसको रेड फ्लैग ही कहेंगे. लेकिन आपको कोशिश यही होनी चाहिए, आपसे कहेंगे जनाब आप मुझे बताएं कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मेरे कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और आप किस टर्म्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. बहुत जरूरी है कि आप इन्वेस्टर ही से ये पूछें. यूसुफ ने उस पर टच भी किया अभी, जो उन्होंने कहा कि देयर आर लेट्स से डिफरेंट मिक्सेस, डिफरेंट रेसिपीज. सो यस, convertible notes and safe is an important way at the seed and early seed stage. दूसरा जो है कि जी आपको ये क्वालिफाइड डिसीजन लेनी पड़ती है कि अगर मुझे इक्विटी भी देनी पड़ती है तो मैं देखूं कि मैं क्यों इक्विटी दे रहा हूं और इस इक्विटी से क्या होगा, इस इन्वेस्टर के आने से मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा.
क्योंकि आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए। आपका एक रनवे होता है, एक लिमिटेड रनवे होता है। उस रनवे में आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है, आपने फास्ट ग्रोथ करनी है, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। स्केलेबिलिटी का लफ्ज पहले आया था कि बिजनेस आपका जो है वो स्केलेबल होना चाहिए। दूसरा हमने कहा कि जी उसको इन्वेस्टेबल होना चाहिए। इन्वेस्टेबल का मतलब ये है ना सिर्फ कि बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, आपके पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन आपने अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ है। क्या आप अभी तक स्कूल बॉय स्कूल गर्ल पैक्ट में चल रहे हैं, 3 लोग इकट्ठे हुए एक जगह पे काम कर रहे थे या कहीं एक जगह पे पढ़ रहे थे, किसी भी तरीके से इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा जी चलेंगे ये काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं की आपस में, उन्होंने आपस ही में अपना शेयर होल्डर्स का जो है एग्रीमेंट नहीं किया हुआ। वो नॉर्मली एंजल्स के लिए रेड फ्लैग होता है कि इन्होंने तो खुद आपस में बैठ के ये नहीं किया हुआ, ये मेरे साथ बैठ के क्या करेंगे। दूसरा, डिलीजेंस की जो बात है, जो अदन ने बात की कि आपने पहले दिन से अपनी ये बनाई कि मैंने अपनी अकाउंटिंग करनी है, मैंने एक एक चीज डॉक्यूमेंट करनी है। डॉक्यूमेंटेशन इज क्रिटिकल। आप जानते हैं कि हम एनआईसी में लोगों को कहते रहते हैं कि बेशक आपने अगर पैसे नहीं भी रेज करने इस इन्वेस्टमेंट समिट में, आप तैयारी जरूर करें ताकि आपका जो है फाइनेंशियल तैयार हो, आपकी जो ना वो जर्नी जो है वो डिफाइंड हो, आपकी पिच तैयार हो, वो सारी चीजें तैयार। अब एक इन्वेस्टर, एक हमारा फाउंडर है, ठीक है ना, उसने पिछले इन्वेस्टर समिट में जब उसको मौका था उसने पिच नहीं किया था। अब वो मेरे पास आया, उसने कहा कि जी अब मुझे जो है ना, अब मुझे समझ में आई कि मुझे पैसे रेज करने, ये मैं कर चुका हूँ। वो 5-5.5 करोड़ का बिजनेस किया उसने पिछले 6 महीनों में। लेकिन उसने कहा आप सही कह रहे थे कि मुझे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, इस मार्केट अपॉर्चुनिटी के लिए, बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है उसके सामने। अब वो कह रहा है कि जी अब मुझे तैयारी करनी है इसकी, बल्कि यासिर आई एम गोइंग टू सेंड हिम टू यू बिकॉज़ ही इज ही नीड्स हेल्प, सो यू गॉट टू डू दैट विद हिम। तो आपने अपनी कंपनी को तैयार करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो हम कहते हैं इन्वेस्टेबल व्हीकल। मोस्ट इन्वेस्टर्स विल बी ओनली इंटरेस्टेड इन व्हाट वी कॉल लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई अपनी कंपनी बनाओ, उसकी जो डिलीजेंस की, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है कंप्लायंस की, वो पूरी करो। क्वार्टरली अपनी बोर्ड मीटिंग करो, उसके जो है ना मिनट्स रिकॉर्ड करो, एससीसीपी के साथ अपनी फाइलिंग्स करो। दूसरी चीज जो एक अभी यूसुफ ने टच की, lot of these companies that have raised a lot of money, right, they are registered abroad. उनकी पेरेंट कंपनी जो है ना वो बाहर रजिस्टर हुई है, वो इन्वेस्टेबिलिटी के लिए ये काम हुआ है, ठीक है ना, वो बाहर रजिस्टर हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी और अब वो हट रही हैं, काफी प्रॉब्लम्स उसमें कम हो रही हैं, लेकिन अब भी है, स्पेशली मनी कमिंग इन फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, उसकी वजह से। उसका प्रॉब्लम ये है कि जब वो फिर कंपनी जो बड़ी होती है और एग्जिट्स होते हैं, तो वो पाकिस्तानी कंपनी का एग्जिट नहीं होता, वो उस इंटरनेशनल कंपनी का एग्जिट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ हम एड्रेस कर रहे हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं। अब देखिए जमीन, राइट, इज नाउ यूनिकॉर्न, बट इट्स नॉट जमीन इन पाकिस्तान, is their parent company based out of the Middle East. That is the company that has become a unicorn, not the Pakistan entity, right? तो ये एक पेन पॉइंट है हमारे लिए। इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान ही में इन्वेस्टमेंट हो सके, पाकिस्तान ही में पेरेंट कंपनी बन सके। I think I see Kaleem's face popping up in the feed, which is a signal that we should probably conclude this. So last question to you, Adam, and then I'll kind of like hand it over to Kaleem after this. What are your thoughts on in terms of, because investment appetite has certainly increased पिछले 5-10 सालों में अगर हम देखते हैं, where do you see, and I would love that hopefully someone asks this question in the VC panel that is happening after this as well, where do you see that risk appetite किस तरफ जा रही है, because a lot of people say that risk appetite has particularly been a flat line, investment appetite बढ़ी है but risk appetite नहीं बढ़ी, number one, and number two, what will be your advice or kind of like game plan for people, let's say primarily technology companies की हम बात कर लेते हैं, bigger technology companies, to come in and start diversifying कि हमें innovation की तरफ देखना है और हमें products की तरफ देखना है और हमें startups की तरफ देखना है, and we need to play a role. Okay, so risk appetite, pre-COVID, my observation and my recommendation, my suggestion would have been different, but I believe
after the advent of this pandemic, I would say that overall the pool will become definitely larger, pool of investors, because abhi jo current challenges aaye with their current businesses, such as the retail businesses, definitely people would be willing to get into newer opportunities, explore newer opportunities, और definitely जो ये आप लोगों ने develop किया है इसमें they will definitely jump in. So risk appetite per se from the point of view of वही वाली बात के equity focus करना है या rent seeking को focus करना है, वो थोड़ा एक balance देखेंगे in my point of view जो भी investor होगा. But definitely the pool is going to grow bigger. Game plan for innovation, I believe कि again जो challenges आए हैं, robustness of the business models have been challenged in this pressing times. So organizations are definitely looking into innovations and newer ideas and sustainable ideas, or ideas which they can implement not only in Pakistan but in other countries of the world. So innovation appetite will increase and the pool will become bigger. However, the risk appetite will become balanced, I would say. एक जो hockey stick वाला था, exponential growth वाला था, probably I would say कि वो उसके साथ जो आपका rent seeking के साथ कुछ उसको balancing act करना पड़ेगा for the startups. ठीक. So thank you so much, Murtaza, Adam, Yusuf, and Faisal and Bilal. Abhi Bilal, I believe, disconnect हो चुके हैं. Thank you so much. You guys have been very patiently answering our questions on a very lengthy session. And I see that you guys have been really, really active on the chat as well, trying to answer as many questions as possible. So thank you so much for making it to this panel. Thank you so much to the NIC team to sort of like keep pushing me and inviting me to moderate these amazing panels that have these very insightful and interesting discussions. I would like to shamelessly plug one thing at the end of the session. Faisal mentioned a video about investors and a conversation between startup founders and investors. So we produce these videos on Traveling Mentors page. I have pasted that link in the chat as well. You can come follow us for all sorts of videos regarding the startup ecosystem and products, and hopefully much more. So thank you so much, everyone. Thank you so much to the audience who had been very active. The chat has been buzzing all along. We have been getting a lot of questions on all platforms. So thank you so much once again. Over to you, Clean. Yes, thank you very much, Yasir Saab. Thank you, Murtaza, Adam, Faisal Saab, Umar, and Bilal for this panel. A very special thanks to Yusuf Saab. 12:30 बजे इनके टाइम के मुताबिक सेशन शुरू हुआ था, 2 बज चुके हैं. I hope you get some time to sleep before Sehri. जब मैंने इन्हें मैसेज किया तो he didn't think for a while. I guess at least LinkedIn के replies तो ये लग रहा था he didn't think for very long before committing to this session. So, sir, thank you very much for this session. Very much. जी बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. और to the audience, I think we are like 10 minutes from our next session. So the next session is on VC, how to pitch to a VC firm. So आज हमने दोनों sessions इसीलिए हमने एक क्लब किए थे और उसमें we have got 7 or 8 or 9 people. So Yasir's background is quite distracting. I'll just finish in next 10 seconds. so उसमें आप कहने के हमारे पास जो पैनलिस्ट हैं वो राबील वड़ाइच है, सरमायाकार सहरी मुख्तार हैं, फातिमा ग्रुप से खुरम जफर उसको मॉडरेट करेंगे. और मैं तो अब सोच रहा हूँ कि कैसा पैनल होगा जिसको खुरम जफर मॉडरेट करेंगे. उन्होंने सुबह से ही वार्निंग दे दी है कि जो मेरी कॉलेज की बाउंसर स्किल्स थी वो इसमें काम आएंगी. मिसबा नकवी हैं उसमें I2I वेंचर से, मीना तारिक हैं कारवान से, आतिफ अवान हैं इंडस वैली कैपिटल से, उमर विल बी जॉइनिंग अस अगेन, अली समीर होंगे जो ETPL वेंचर्स को पहले देखते थे, और फैसल आफ्ताब होंगे लेक्सन से. So, sir, thank you very much once again, and I look forward. Kaleem, Yusuf साहब को link उसका भिजवा दीजिएगा because I don't think he's going to sleep before Sehri. So इनको link भिजवा दीजिए so he can definitely join in as a participant and maybe ask some questions, especially of Khurram Zafar. Yusuf साहब, he needs a couple of bouncers. I'll try my best to attend, Ji.
थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I'll see you again जी, शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।